नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के भी, और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। Why can't I see प्रदीप जी? Is there a problem again? नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, वंदे मातरम, वंदे अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणकम, in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa, Pradeep ji. Abaryako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Right, I'm getting a lot of responses from Taiwan, by Yes, the way, from Chinese Taipei, which is fantastic. I didn't know that there was a huge Indian population over there. After Amir Khan, you're the most watched person in China. Wow, isn't that lovely? Yes, sir. प्रदीप जी को आज Pradeep जी को आज सुबह से कोई मिला नहीं। चलिए, but I'll tell you what, it is absolutely true. We're getting a lot of response from Shanghai, which is fantastic. And people want to know. Do you know something, Pradeep ji? Yes. और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि शंघाई से बड़े उत्तर प्रदेश के बड़े लोग हैं यार वहाँ पे। बहुत है। एक तो the topics that you discuss national importance में और एक न्यूट्रल और सेक्युलर तरीके से बात करते हैं जी। Not the secularism of Congress, but जो as defined in our constitution. So there's a lot of people who appreciate this kind of a neutral stance, and that is increasing our viewers. And you get a correct view, एक सही view of what's really happening, the state of affairs. Is it in the right direction? That's and right. then if people want to know that, they watch your show. And there's something that has happened to the guest. I could see Mr. Manoj Yadav as soon as I came in, and now I believe he's not there. And he's going to be joining very, very shortly. But in the meantime, Pradeep ji, the fact remains that as far as organizer is concerned and the RSS mouthpiece is concerned, yes, sir. And if you actually look at the Twitter handles or X handles of most of the Sangh Parivar, they seem to be attacking Ajit Dada Pawar again and again. I don't know why. They say, what is he bringing on the table? Why have you got him with you? Ajit Dada Pawar को अपने साथ क्यों रखा हुआ है आपने? Effectively telling the BJP कि भैया हो गया ना, आपने बदला ले लिया शरद पवार जी से, क्योंकि शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे जी को मना के फुसला के जो भी करके आपसे छुड़वा के उनको मुख्यमंत्री बना दिया और 2.5 साल तक उनकी सरकार चलाई। अब आपको अजीत दादा पवार की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि आपने सरकार तोड़ ही ली थी एकनाथ शिंदे जी के साथ। अजीत दादा पवार की अब क्या जरूरत है प्रदीप जी? सर, अगर शादी किया है तो निभाना पड़ेगा। तो शादी से पहले सोच लिया होता क्या गुण क्या है, अवगुण क्या है। तो once if प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज ऐसे नहीं कि ओवरनाइट द डिसीजन, बिकॉज मोदी जी बात कर रहे हैं 70,000 करोड़ के बात कर रहे हैं, बार बार मीटिंग्स हो रहे हैं, तो एवरीबडी न्यू व्हाट्स हैपनिंग। And you got RSS BJP समन्वय समिति भी है, कमिटी भी है, that meets regularly and discuss the what is happening in the affairs of the nation. So nothing was actually कुछ छुपा हुआ नहीं था. It's not an overnight jump over. So मेरा कहना है कि if Modi ditches him right now, if Prime Minister Modi ditches Ajit Pawar right now, you don't send a message to the alliances that ये फिर वो use and throw वाली पॉलिसी है। तो नंबर 1 पहले से इसका कोई जरूरत नहीं था, अब जरूरत है, शादी कर लिया तो मेरा हिसाब से लेकिन मेरा आरएसएस इतनी ज्यादा उत्तेजित क्यों है अजीत दादा पवार को लेकर के? मतलब मेरा ये कहना है, क्योंकि अगर जैसा आपने कहा आप शादी कर लिए, भले ही दूसरी शादी हो, लेकिन फिर भी अब निभाना तो पड़ेगा। दूसरी बेगम है आपकी भाई, अब निभाना पड़ेगा आपको। अब वो बड़ी बेगम है एकनाथ शिंदे, वो तो बड़ी बेगम क्या, वो तो नवाब बन गए। वो मतलब ऐसे लग रहा है कि यू आर beholden to मिस्टर एकनाथ शिंदे, द वे एकनाथ शिंदे साहब इज बिहेविंग। लेकिन जहाँ तक अजीत दादा पवार का प्रश्न है, अजीत दादा पवार will have to prove his usefulness to the BJP and to the rest of the alliance, because at the moment he seems to be under pressure because he is unable really to hold his flock together. Look at what's happened in Pune. All these people have come back into the Sharad Pawar fold. I agree, it's only one district, लेकिन फिर भी सर पुणे के पालक मंत्री जो हैं, गार्डियन मिनिस्टर जो हैं, वो अजीत दादा पवार हैं। चंद्रकांत पाटिल साहब को बाहर निकाल करके अजीत दादा पवार खुद बन गए वहां के पालक मंत्री, और वहीं के लोग छोड़ करके शरद पवार के पास चले गए। जी बताएं। अब इनको लड़ाया। आई डोंट थिंक अजीत पवार भी उनको मालूम है कि ही अलोन कैन नॉट टेक ऑन द माइट ऑफ शरद पवार, तो ही ऑलवेज थॉट दैट सेंटर सपोर्ट से वो लड़ पाएंगे, और वो भी नेचुरल पॉलिटिक्स। अजीत पवार कल का बच्चा है, वो शरद पवार से कहां पंगा ले पाएगा? तो ही रिक्वायर्ड द सेंट्रल सपोर्ट। Center has supported him, and center has supported him even after failure. फेलियर के बाद भी सुनेत्रा पवार को वहां से लड़ा है शरद पवार जी के खिलाफ, फैमिली में डिस्प्यूट कराया। नाउ ही हैज टेकन दिस चैलेंज, he is taking the challenge because probably there was some communication between the central command and Ajit Pawar. He fought, Sunitra Pawar ladi, हारी,
and then immediately she's taken the Rajya Sabha. Now, the BJP has not left him there and isolated. They have seen that... And they have not left him, and they have not left him in spite of the presence of Mr. Nawab Malik. Exactly. नवाब मलिक साहब के साथ के खिलाफ देशद्रोह का केस है, यूएपीए का केस है, एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी ने व्यक्तिगत तौर पे लिया जो कुछ भी नवाब मलिक साहब ने कहा, और ये भी बात ठीक है कि नवाब मलिक साहब ने व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर करी थी देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी पत्नी पर, जिससे उनके हृदय को बहुत ठेस पहुंची देवेंद्र फडणवीस जी को। इसके बावजूद कि नवाब मलिक साहब जो हैं अभी अजीत दादा पवार के साथ हैं और दिखते भी हैं। उस दौर पे नवाब मलिक जी को शरद पवार ने खुली छूट दी थी, खुली छूट। किस पे भी आरोप लगाओ, कुछ भी बोल दियो, आप पे भी आरोप लगाया था, आपका भी वीडियो दिखाया था 6 बार। यस यस। और कहा एटम बम फोड़ने वाला हूं, एटम बम फोड़ने वाला है। एंड बाय द वे आई स्टिल मेंटेन मिस्टर नवाब मलिक इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज जस्ट मिसलेड, दैट्स ऑल। उनको बहुत अच्छे तरीके से किसी ने, हमारे ही कुछ मित्र थे जिन्होंने जाकर के उनको ब्रीफ किया हम लोगों के खिलाफ, दैट इज नो प्रॉब्लम। आई एम रीजनेबली सर्टेन मिस्टर नवाब मलिक विल बी बैक ऑन दिस शो। However, all I am saying is, even now, Mr. Devendra Fadnavis and Ajit Dada Pawar are together, in spite of the huge opposition from everywhere, which is what I can't understand. हाँ, और मैं जो बात कर रहा था ना सर अभी, जैसे शंघाई से, अब शंघाई से मैसेज आ रहे हैं, अरे भाई कोई कानपुर वाला है वहां पे रहता है, कोई बहराइच वाला वहां पर रहता है, यार सहारनपुर वाले बिल्कुल शंघाई में, और वो सब लोग जानना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को क्या असल में नरेंद्र मोदी जी बाहर कर रहे हैं। अब लेट्स आस्क मिस्टर मनोज यादव साहब समाजवादी पार्टी के चीफ spokesperson and one of the most articulate spokespersons that I have ever come across, and very knowledgeable by the way, one of the most knowledgeable and well-read people in this entire country। और मैं उनको चढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन बिल्कुल सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ। मनोज यादव जी नमस्कार। नमस्कार 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 सर, जय हिंद, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया लग रहे हैं, जबरदस्त लग रहे हैं। गाड़ी में शायद आप अभी इस वक्त कार में जी कार में हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सर? कुछ अगर कोई टॉप सीक्रेट मिशन नहीं है। 8 बजे मेरा एक शो है, तो स्टूडियो के लिए मैं निकला था जी, तो वही मैंने कहा रास्ते में लखनऊ में क्या नोएडा में? लखनऊ। अच्छा, तो सर मैंने जैसे अभी बताया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि शंघाई में, चाइना में जो शंघाई है, वहां पर हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग रहते हैं और वो बहुत शो देखते हैं, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि भैया ये बताओ, उनका बेसिक सवाल ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, क्या योगी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो जाएगी या क्या होगा? और हर एक ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है सर, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, हर एक ने बिल्कुल बधाई आपको भेजी है, शुभकामनाएं भेजी है समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को आपकी लोकसभा की परफॉर्मेंस पे। वो एक्चुअली मुझे बहुत पहले पढ़ना चाहिए था, ये 10 दिन पहले की आ गई हैं सारे जो कमेंट्स आए थे। My fault, I should have read it earlier, but this is amazing. So you are being watched all over the world. Fantastic. So मनोज यादव जी, आप ये बताएं, आदरणीय सम्माननीय योगी जी क्या वापस मठ में जाएंगे या कार्यालय में रहेंगे सर? नहीं, बड़ा आप इस वक्त पूरी तरीके से बर्निंग वाला सवाल पूछ रहे हैं। जल रहा है ये चारों तरफ सवाल, मीडिया में, सोशल मीडिया में, बीजेपी के कार्यालय में, बीजेपी के विपक्ष में, पक्ष में, सब जगह ये बिल्कुल ज्वलंत सवाल है कि योगी जी मठ में रहेंगे या जाएंगे। अगर मेरे अपने अनुभव के आधार पे, मैं जो बीजेपी को रीड करता हूं उसके आधार पे अगर मैं कहूं, तो मुझे ऐसा लगता है योगी आदित्यनाथ जी अपना टेन्योर पूरा करेंगे। बीजेपी उनको हटाने नहीं जा रही। बड़ा प्रयास हुआ, बड़ी बातें हुई, बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसको वो चीफ मिनिस्टर बना सके। योगी आदित्यनाथ का अपना एक स्टाइल है और उसी स्टाइल से वो काम करते हैं। निश्चित तौर पे जो 2 दिन से घटनाएं उत्तर प्रदेश में 3 दिन से घट रही हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उन्होंने अपने पुलिस महकमे और SDM DM मुजफ्फरनगर को पहले एक आदेश दिया कि अब कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से निकलेगी, फिर वहां पे मुसलमानों की आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मुसलमान कौन है, कौन हिंदू है, कौन सी दुकान फल की हिंदुओं की है, कौन सी मुसलमानों की। तो योगी आदित्यनाथ की पहचान यही है आरके जी, और जिस व्यक्ति की जो पहचान है उस पहचान के दम पे ही अपने आप को राजनीति में बनाए रखना चाहता है। तो योगी आदित्यनाथ ने वो अपना काम कर दिया है। इस इतने ही कृत्य से, जितना कृत्य उत्तर प्रदेश में आज भी एक
आदेश आया है कि पूरे ऑल ओवर यूपी में जहां जहां कांवड़ यात्रा निकलेगी उस रास्ते पे सभी को अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। होटल वाले को, फल वाले को, सब्जी वाले को, सबको बताना पड़ेगा साहब हम इस धर्म के हैं, और वो चॉइस है कि कांवड़ यात्री किस दुकान पे खाएंगे, किस पे नहीं खाएंगे। मनोज यादव जी, मगर एक चीज है कि क्या ये इसमें कुछ फॉल्टी है? बिकॉज सभी को अपना अपना, यहाँ पर मुंबई हो, महाराष्ट्र में हो, कब सबको अपना बोर्ड तो डिस्प्ले करना ही पड़ता है। सबको अपना नाम, प्रोप्राइटर, क्या धंधा है, म्युनिसिपैलिटी का रजिस्ट्रेशन, जो लोकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, ये तो यूजुअली डिस्प्ले करते हैं। मगर अभी इस ये संदर्भ में क्या इतना बड़ा चर्चा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मींस क्या ये, जैसे बीजेपी कह रहा है कि आप कम्युनलाइज कर रहे हो, आप इसको कम्युनलाइज कर रहे हो, ये नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है कि सबको अपना दुकान के सामने अपना नाम, अपना प्रोप्राइटर का नाम, कंपनी का नाम, जीएसटी, सीएसटी, एक प्रथा है। मगर अब इसको क्या एक बढ़ावा दे रहा है क्या, या आपको लग रहा है कि टारगेट हो रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? प्रदीप जी, टारगेट नहीं है ये। पुलिस जो आपने योगी आदित्यनाथ को लेकर जो अभी सवाल पूछा था, ये उससे कनेक्ट है। आप एक बार सोच के देखें ना, योगी आदित्यनाथ ने मैसेज आरएसएस को, बीजेपी को ये मैसेज दे दिया कि मैं ही हूं इकलौता जो इतने बड़े बड़े असंवैधानिक अनुच्छेद 15 को धज्जियां उड़ा के मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, दूसरा कोई बीजेपी में नहीं है, न कर पाएगा। तो ये योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया है कि मैं अनुच्छेद 15 की ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो मनोज यादव जी, क्या है कि जैसे कांवड़िया यात्रा होती है, अलग अलग यात्रा होती हैं, उस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा जो बिकवाली होती है बेचारे फल वालों की, छोले भटूरे वालों की, जो साथ में बेचने वालों की, प्रसाद वालों की, उसमें क्या है कि उनका अगला 2-3 महीने का खर्चा चल जाता है। अब इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मुसलमान की दुकान है, ये हिंदू की दुकान है, ये बौद्ध की दुकान है, ये शेड्यूल कास्ट की दुकान है, ये इस जात वाले की दुकान है, ये उस जात वाले की दुकान है, क्योंकि ये सिर्फ एंटी मुस्लिम ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग जातों का भी जिक्र आएगा, रेफरेंस आएगा कि कौन निषाद है, कौन कुर्मी है, कौन केवट है, कौन क्या है। तो आपको लगता नहीं कि इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पहले ही इतनी पोखल पोखल हो गई है और ज्यादा पोखल हो जाएगी, हालत खराब होने वाली है सर इससे, तो मुझे ऐसा लगता है। मनोज यादव जी, देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ के मन में, उनकी विचारधारा में, उनके अंदर ये कोई भी अगर बीज बहुत समय से अगर ये चल रहा होता तो वो अपने 7 साल में पहले ही ये डिसीजन ले लेते जी। डिसीजन किस टाइम लिया है? उस टाइम लिया है जब ये दिल्ली टू लखनऊ ये चर्चा चल रही है हर फ्लाइट में कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा कब होगा, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से कब हटाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा, मौर्य जी बनेंगे, पाठक जी बनेंगे, त्रिवेदी जी बनेंगे, पटेल जी बनेंगे, कौन जी बनेंगे, इस पे चर्चा हो रही। तो योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? वो कोई वीडियो भी नहीं बना सकते कि मैंने ये वाला रोड बनवा दिया, मैंने यहाँ मेट्रो बनवा दी, यहाँ मैंने बस स्टॉप बनवा दिया, यहाँ मैंने स्कूल बनवा दिया, ऐसा कुछ वीडियो बना नहीं सकते हैं रीजन, क्योंकि वो कुछ है भी नहीं। अगर जैसे ही बनाओगे उसमें समाजवादियों का काम झलक जाएगा तो प्रचार हमारा ज्यादा हो जाता है, उनका कम हो जाता है, ये भी एक समस्या है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो दिखाएंगे तो हमारे नेता तो नहीं पीछे चुकने वाले ना, हमने 75% जमीन अधिग्रहण किया तो हम अपना भैया क्रेडिट लेने में पीछे कभी नहीं रहेंगे। हमने 75% जमीन अधिग्रहण की, हमने किसानों को पैसा दिया, हमने एक रोड मैप बनाया, 300 लगभग 35 किलोमीटर का हमने वो उसको जो भी जितना भी था उसको सब तय किया, सारे मानचित्र किए गए, तो हम तो ले लेंगे। तो उसमें नुकसान है वो, अच्छा नागपुर पे उसका ज्यादा असर भी नहीं, असर किसका होगा? हिंदू मुसलमान का, क्योंकि नफरत की जो पहली और आखिरी पाठशाला वो नागपुर में ही है। आपके यहाँ जहां से आप बैठे वहां से थोड़ा नजदीक है, यहाँ से तो मान लो दूर है, तो उसका असर जो है इन सारी चीजों के माध्यम से बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। और उसका असर ज्यादा यूपी में पड़ता है सर उसका असर ज्यादा यूपी में पड़ता है। मध्य प्रदेश से होकर के सीधा यूपी जाता है, उसका असर जो है यहाँ मुंबई तक आते आते वो जरा डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर पे, अपने एक्स अकाउंट पे लिखा है, जबरदस्त ब्यूटीफुल ट्वीट उनकी जो आई है अखिलेश यादव जी की, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। ये मजाक कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जरा बता दीजिए। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी बड़ा ज्वलंत सवाल है, बिल्कुल जिसे कहते हैं नहीं, इस वक्त सुपर हिट सवाल है ये पूरे देश की मीडिया में। नहीं, इसमें एक अगर अंदर की मार्मिकता की बात करेंगे, दो पहलू हैं। एक मार्मिक पहलू,
मार्मिक पहलू ये कि समाजवादी पार्टी जो है और समाजवादी जो हमारी विचारधारा है वो सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों को और जो शोषित है उस समाज को आगे करने के लिए पूरी समाजवादी विचारधारा बनी है और लोगों को गैर बराबरी को खत्म करके बराबरी पे कैसे लाया जाए ये वाली बात है। तो सवाल उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए क्यों ये ऑफर है। ऑफर इसलिए है 2017 में उन्होंने कहा कि उनके दम पे सरकार बनी और जब दिल्ली गए और दिल्ली में फैसला उल्टा हो गया तो उनको बेचारों को किसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उन्हें अटैक जैसा कुछ आ गया था और वो बड़े सदमे में चले गए थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष, पूरी मेहनत मैंने की, पूरा मेरा नाम, पिछड़ों को मैंने एकजुट किया और वो उनको सत्ता नहीं मिली, उनको पीडब्ल्यूडी से ही संतोष करना पड़ा। तो हमें एक टीस है, हमें टीस ये है, देखिए वो कोई समाजवादी पार्टी का हो, बसपा का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अगर कोई पिछड़े को जिसके वोट के दम पे सत्ता मिली हो किसी दल को भी लगातार कंटिन्यूटी में दूसरी बार, तो ये बनता है कि उस पिछड़े को हक मिले। तो हमारा पहला तो दर्द है कि केशव प्रसाद मौर्य को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, ऐसा हमारा दर्द है क्योंकि हम पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं तो उनको बैठना चाहिए। दूसरा, ये अगर आप तंज कहते हैं या कोई आप घुड़की लेना कहते हैं या कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी है, चुस्की भी है। इसलिए भी है कि आपको समझ में कब आएगा, कब समझ में आएगा। हम बार बार आपको ऑफरिंग दे रहे हैं। अच्छा, जब केशव प्रसाद मौर्य जी टकराते हैं तो हमारे किसी प्रदेश अध्यक्ष से नहीं टकराते हैं, हमारे किसी पार्टी के दूसरे नेता से नहीं, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से टकराते हैं। तो अगर आप आदरणीय अखिलेश यादव जी से टकराहट रखते हो या उनको उनके बराबर आप अपने आप को लीडर समझते हो तो आपकी कुछ हैसियत होनी चाहिए। और वो हैसियत कैसे पता चलेगी उसको मैं विद एग्जाम्पल प्रूव करूंगा आपके यहाँ। देखिए, आप जब विधायक तोड़ के लाओगे तब आपकी हैसियत पूरे प्रदेश को और देश को पता चलेगी कि केशव प्रसाद मौर्य कितने ताकतवर नेता। इससे पूर्व की बात करो, बीजेपी जब अपने इसी तरह उरोस भी थी, जब राम मंदिर वाला लफड़ा किया इन लोगों ने देश भर में, तो कल्याण सिंह इनके क्या शब्द मैं उनके लिए इस्तेमाल करूं, तो दिवंगत हैं वो, लेकिन सबसे हॉट बॉय के रूप में वो थे बीजेपी में। और चूंकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में वो सारा कुछ हुआ तो और भी ज्यादा सुर्खियों में थे। लेकिन कल्याण सिंह ने अपनी, जब बीजेपी ने उनको डिनाई किया, जब बीजेपी ने उनको फ्रंट फुट की जगह बैक फुट पे किया, तो कल्याण सिंह ने बीजेपी को बीजेपी की हैसियत दिखा दी और उनकी दिखाई हैसियत बीजेपी को लगभग 14, 15, 16 साल सत्ता नहीं नसीब हुई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनका एक स्टैंड हो गया था। फिर उनको खैर वो हमारे दल में आए, इसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया, फिर उनको फिर बीजेपी में बैक होना पड़ा। तो अगर कल्याण सिंह को आज पूरी दुनिया जानती है, मानती है और वो समझती है कि वो बड़े डिसीजन लेने वाले नेता थे, तो अगर केशव प्रसाद मौर्य जी में थोड़ा सा भी है, लगता है कि नहीं मैं बिग लीडर हूँ, उत्तर प्रदेश का पिछड़ों का नेता हूँ और अपने समाज की बात उठा सकता हूँ, बेहतर तरीके से हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ और उनका सहयोग भी हमें मिल रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले पाते तो उनसे एक ही अनुरोध है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप टारगेट मत किया करो, आप योगी आदित्यनाथ टारगेट किया करो, तब भी आप बड़े नेता बन जाओगे। हम तो आपके सम्मान के लिए कह रहे हैं, 100 लाओ, सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री का पद पाओ, इस टूल से निजात पाओ। अब उसके बावजूद अगर वो नहीं समझ पा रहे तो हम कर सकते हैं। तो 2022 में तो केशव प्रसाद मौर्य जी हार गए थे ना, 2022 चुनाव भी है, बिल्कुल चुनाव हार गए। बीजेपी बुरी तरीके से परेशान थी, ये तो अमित शाह की कृपा थी, क्योंकि 24 में चुनाव था मोदी जी का, तो उनको किसी तरह की अभी मुझे 24 में चुनाव लड़ना है, अगर केशव प्रसाद मौर्य को हमने हटा दिया। बीजेपी का ये कल्चर आरके जी नहीं है, बीजेपी का स्पष्ट कल्चर, अगर हार गए तो घर बैठो, संगठन में काम करो, अगर तो सत्ता की बात करो। अगर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी कौम की वजह से, तुम्हारे वर्ग की वजह से ज्यादा है, अच्छा लाभ है, तो साहब ठीक है, तुमको बहुत अच्छा मजबूत पद मिल जाएगा। पल्लवी पटेल जीत गई थी वहां से, निश्चित तौर पे पल्लवी पटेल जी ने उनको लगभग 7,000 वोटों से हराया था, ये मुझे आंकड़ा भी याद है, 7,000 समथिंग कुछ वोट था। तो लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर मतलब कब तक अंतरात्मा नहीं जगी, कब तक अंतरात्मा नहीं जगी, कब तक आप ताकतवर नेता। और इस बार अगर केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपने आप को प्रूफ कर दिया तो ठीक ना, दोबारा इस जीवन में मेरी भविष्यवाणी आप फिर नोट कर लो, जब तक हम लोग राजनीति करेंगे देख लीजिएगा केशव प्रसाद मौर्य कभी इस तरह फ्रंट। मनोज यादव जी कैसे होगा, बिकॉज बीजेपी के 15 पेज का रिपोर्ट है कि हार हम लोग किस लिए हारे,
तो उसमें से है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होंगे, ठाकुर नाराज है, अग्निवीर है, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, पेपर लीक हो रहा है 6 साल से, संविधान बदलने वाली बात है इसलिए सब लोग पीछे हट गए, फिर केशव प्रसाद मौर्य जी के संगठन बड़ा है या सरकार बड़ा है, तो उन सब का सॉल्यूशन निकाल के 15 पेज का रिपोर्ट, तो आपको लग रहा है कि ये आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम, अब फिर बीजेपी हार सकता है क्या? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई बिंदु नहीं, कोई पहलू नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, बीजेपी की नीतियां पूरी तरीके से बेकार थी, जनता ऊब गई है, जनता बदलाव के मूड में थी, सरकार जो नहीं बदल पाई है। फिर मैं बता रहा हूं, देश में दिवाली नहीं मन पाई, देश में होली नहीं मन पाई। फिर मैं बता दे रहा हूं, देश की जनता चाहती है बीजेपी को हटाना, किसी तरह बेईमानी करके 40-50 सीटें जीत के 240 तक चले गए साहब, बड़े वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, हमारे और आपकी दूरी के बीच में लगभग बैठते हैं। तो ये जो दिल्ली वाले साहब है, दिल्ली वाले साहब ने बेईमानी करके किसी तरह अपने आप का बहुमत साबित कर दिया, लेकिन ये चलने वाला नहीं बहुत दिन तक। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आप सम्मानजनक राजनीति करना चाहते हैं, दल कोई हो, तो आपको बड़े स्टैंड लेने पड़ेंगे। अगर वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो जाहिर सी बात है अपमान होगा। हम परेशान है कि पिछड़ों का अपमान ना हो, और वो परेशान है कि हम स्टूल के सिवा कुछ चाहते ही नहीं है, स्टूल पे ही बैठेंगे जब बैठेंगे। लेकिन मनोज यादव जी, भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर पहले, अभी तो नहीं पता, पहले भारतीय जनसंघ के दिनों से मुझे याद है, बड़े मदन लाल खुराना जी, केदारनाथ सानी जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी, सुषमा स्वराज जी, ये सब, ML सोंधी साहब भी हुआ करते थे, और तो और छोड़िए, ये सब लोग जो थे ये बड़े दिग्गज लोग थे, बड़ा अच्छी तरह एनालिसिस करते थे। KL शर्मा जी बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते थे एक जीत का और हार का। ये पहली बार मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में बुरी तरह हार हुई है। पहली बार ये कहा गया है कि भाई हमें संविधान के ऊपर लोगों को गुमराह कर दिया गया, झूठ का पुलिंदा जो है वो हर जगह पर चला, ये चला वो चला। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कोई जब तक कोई डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जीतेगा कैसे सर? देखिए, झूठ की पाठशाला, पौधशाला सब कुछ RSS और बीजेपी में नहीं था। विपक्षी झूठ नहीं फैलाते। अगर आप मुझे पूरे भारत में बीजेपी के हर स्टेट के उस नेता का आपको मैं भाषण सुना सकता हूं जिन्होंने कहा कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है जी। अब अगर ये नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं या बीजेपी कहना चाहती है, RSS कहना चाहती है, तो ये तो मिथ्य है, झूठ है, प्रपंच है कि RSS और बीजेपी चाहती है कि ये संविधान बदले। और संविधान में और कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ बदलना है कि पिछड़ों को आरक्षण, दलितों को आरक्षण कर दो, और जैसे ये लोग, इनका आरक्षण खत्म होगा, इनका एम्पावरमेंट खत्म हो जाएगा, इनका सशक्तिकरण खत्म हो जाएगा, और जैसे वो खत्म होगा निश्चित तौर पे पूरे देश में राजतंत्र लागू हो जाएगा। क्योंकि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब किसान मजदूरों को और अगड़ी जातियों में भी जो पीछे रह गए, क्योंकि अब उनको भी तो 10% EWS का आरक्षण मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आरक्षण सिर्फ पिछड़ों का और दलितों का, अगड़ों का भी है, उनका भी खत्म करना पड़ेगा। वैसे उनका स्वघोषित तो उनका आरक्षण तो चल रहा है, सदियां, दशक और पता नहीं क्या क्या बीत गई। अब उसके बारे में तो मैं नहीं ज्यादा जानना चाहूंगा उसमें, लेकिन स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जी ये एक षड्यंत्र था, जो षड्यंत्र नाकाम रहा। और ये ऐसी बात नहीं है मनोज यादव जी, और ये ऐसी बात नहीं है कि अभी से शुरू हुआ है, 1.5 साल पहले से ये शुरू हुआ है। अगर आपको याद हो, आदरणीय सम्माननीय ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन्होंने कहा था, और तो और छोड़िए, कि वी हैव टू टेक ए सेकंड लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन। जहां जहां पर एग्जीक्यूटिव को काम नहीं करने दिया जा रहा, वहां वहां वो सब क्लॉजेस को हटाना चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है, और तो और छोड़िए, उसके बाद राम माधव साहब, उसके बाद आनंद हेगड़े साहब, और उसके बाद न जाने कितने और साहब। तो बीजेपी कैन नॉट डिनाई दिस कि उन्होंने नहीं कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना चाहते। कहां है उन्होंने भाई? तो मनोज यादव साहब, अभी आपको लगता है कि दे हैव लर्न देयर लेसन, उनको ये अब सबक वो सीख लिया है उन्होंने, और अब ऐसी कोशिश ये लोग नहीं करेंगे? मनोज यादव जी, मैं ज्योतिष, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि अभी जो 3 स्टेटों का चुनाव है, जिसमें एक स्टेट आपका हरियाणा और झारखंड है जी, इस स्टेट के चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी को थोड़ा सा सबक और सीखने को मिला, क्योंकि बुरी तरीके से तीनों स्टेट बीजेपी हारने जा रही है। 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश की सीटों के, हम इनको 8 की अनुपात 2 से हराना चाहते हैं। अब 2 सीटें इनकी बिल्कुल कैडराइज 2 सीटें होंगी, वो जीत जाएंगे। अगर जीत जाएंगे, हमारी 5 है मौजूदा, 5 में 3 और हम प्लस करेंगे, लगभग
8 सीटें हम जीतने का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। तो ये जब इनको 3 स्टेट का झटका लगेगा और उपचुनाव का झटका लगेगा, तो आरके जी मैं दावे से कह रहा हूँ बीजेपी कुछ हद तक सही होगी, और तब तक कुछ और भी घड़ियां आने वाली हैं, उन घड़ियों का हम सब बेसब्री से घड़ियां आगे। संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं मनोज यादव जी, संविधान हत्या दिवस। आप ही चिल्लाते हो कि इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है पिछले 10 साल में, पर मोदी जी ने पूरा हिस्ट्री निकाल के अमित शाह जी के साथ 25 जून हर वर्ष मनाएंगे संविधान हत्या दिवस। इंदिरा जी ने कहना कि 1,40,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, पूरे देश को जेल बना दिया, 1 करोड़ लोगों का नसबंदी किया। इस चीजों को लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। क्या है ये संविधान हत्या दिवस इस प्रकार से डिक्लेयर करना? तो ये क्या इसलिए हाईलाइट कर रहे कि आप बार बार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी को एक बात नहीं भूलनी चाहिए और कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप लोगों का अनुभव बहुत बड़ा है, मुझसे बहुत बड़ा है। आप लोगों ने उस राजनीति को भी बड़े प्यार से देखा, सुना, समझा होगा। बीजेपी इस देश की राजनीति में अछूत के रूप में कार्य कर रही थी। ये शब्द मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरी मजबूरी है, मैं दूसरा कौन सा शब्द कहूं। कोई किसी भी तरीके का महत्व नहीं था भारतीय राजनीति में बीजेपी का। ये धन्यवाद दे समाजवादियों को, समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी दलों को, नेताओं, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन क्रिएट किया, और उस आंदोलन में बीजेपी हमारी साथी बन गई। और बीजेपी ने उस इमरजेंसी की लड़ाई में कितना सहयोग किया, ये सब जग जाहिर है, किताबों में, सबके रिकॉर्ड्स में। समाजवादी पार्टी और समाजवादियों ने जितना बड़ा संघर्ष इमरजेंसी के खिलाफ किया, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे आपको बता चुका हूं या नहीं बताया हूं। मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी का बेटा हूं। मेरे फादर भी इमरजेंसी में 6 मंथ से ज्यादा जेल में रहे, और वो उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जिनका इमरजेंसी में बेल हुआ था। मतलब फर्स्ट पर्सन ऑफ 6 महीने, चूंकि उसमें 2 साल की और 19 महीने, नेताजी 19 महीने जेल में रहे, बहुत सारे लोग 2-2, 2.5 साल जेल में रहे। तो माय फादर इज द फर्स्ट पर्सन हु बेल्ड मीसा में के तहत उनको सबसे पहले बेल उत्तर प्रदेश में मिली, और सत्य कानून की किताब में भी दर्ज। मैं उनका बेटा हूं, तो मुझे भी तो दर्द है। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तब जब मेरे पिताजी जेल में थे। मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ तो उनका नाम इसलिए मेरे फादर ने, मेरे अंकल हैं एक, और सब लोगों ने उनका नाम जेलर रख दिया क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो एक मतलब हम लोगों के साथ यादें हैं, जैसे मीसा भारती जी का नाम आप लोग सुनते हैं। जब लालू प्रसाद जी जेल में थे तो मीसा जी का जन्म हुआ, तो उन्होंने उसके नाम से ही उनका नाम रख दिया। तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के कुछ लीडर्स जेल जो गए थे, उनको अभी पेंशन, वो भी पेंशन देने वाले ये लोग नहीं थे, वो हम थे। समाजवादी पार्टी ने पेंशन शुरू की उत्तर प्रदेश में, तो हम उनको दे ही रहे, अब बीजेपी दे रही। तो बीजेपी अगर ये कोट करती है, ये कहना चाहती है कि वो संविधान हत्या दिवस वो मनाएगी, तो वो मूर्ख है, और इतनी बड़ी मूर्खता का काम कर रही है। उस इमरजेंसी की लड़ाई समाजवादियों ने लड़ी थी, बीजेपी ने नहीं लड़ी थी। बीजेपी अछूत थी राजनीति में। उस दौर में कोई बीजेपी के नजदीक नहीं जाना चाहता था, बीजेपी से कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता था, चूंकि नफरत की पूरी राजनीति भाजपा का ही पूरी तरीके से राजनीतिक सिद्धांत है, जो कोई भी इस देश में राजनीति नहीं पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। आप जिस स्टेट में बैठे हो, कल्पना करो और आप बताओ कि यही शिवसेना किस तरह बात करती थी, लेकिन समाजवादियों के साथ आके उनको बदलना पड़ा, कांग्रेसियों के साथ आके उनको बदलना पड़ा, और अपना पूरा पॉलिटिकल टेक्सचर तो उन्होंने चेंज किया, और वो आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं, नफरत की राजनीति उन्होंने खत्म कर दी। तो बीजेपी को ये कोई राइट नहीं है, ना मौलिक, ना सैद्धांतिक, ना राजनीतिक, कि बीजेपी इस तरह की बात कहे या संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी इस देश को कई बार हत्या जैसे रूप में ढकेल चुकी है। और देश आजाद और ये भी नहीं भूलना चाहिए मनोज यादव साहब, ये भी नहीं भूलना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप सब लोग बड़े क्या कहते हैं उसको, आंखों की शर्म रखते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं हैं इस विषय के बारे में ज़्यादातर। लेकिन सामने से जो प्रोवोकेशन आता है, कभी कभी बोलना मजबूर हो जाते हैं आप लोग बोलने के लिए। बाला साहब देवरस RSS के जो चीफ थे, जेल में थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी इंदिरा जी को कि आप बताइए आपको हमसे क्या सपोर्ट चाहिए। इमरजेंसी के दौरान बाला साहब देवरस RSS के सरकारेबाहा उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट इज अ रियल मैटर, नोबडी हैज डिनाइड इट।
जी बोलिए बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें किसी तरीके कितने सारे तथ्य हैं, कितने सारे प्रूफ हैं कि कब कब आपने क्या क्या किया, आजादी के पहले भी आजादी के बाद भी। उसके बावजूद भी बेहाई से राजनीति करते हैं, बेशर्मी से राजनीति करते हैं। मतलब पा गए, लपेट लिया, नहीं नहीं अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम इसी पे। अरे आपको कितना बेहतर मौका दिया इस देश दिया बताइए, दो दो बार बहुमत की सरकार, कई दशकों से बहुमत की सरकार पूरे नहीं देश आई। में नहीं बनी किसी दल करेक्ट। की। और राजीव गांधी के बाद तो मुझे नहीं लगता है किसी को बहुमत की किसी सरकार को नहीं मिली। मिला। किसी को भी नहीं मिली। जी। तो मैं तो ये जानता हूं कि बीजेपी को कुछ मेरिकल करना चाहिए था, कुछ अच्छा करना। जी। किया भी तो राम मंदिर का अपना श्रेय लेते हैं और मंदिर टपक रहा है, पुजारी बेचारे परेशान है कि तो टपकाऊ मंदिर बना दिया भगवान राम का। मतलब अभी तक टेंट में पानी नहीं टपकता था, मंदिर में पानी टपक रहा है, रोडें धसी जा रही, राम पथ धसा पथ बना चला जा रहा है, वो जहां देखो वहीं धस जाता है। लेकिन मनोज यादव जी, आपने राम मंदिर की बात करी, एक सेकंड, छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं। इस बात पर हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको आप चाहें या ना चाहें आपकी मर्जी है। लेकिन जो दूसरा सवाल है इसी सवाल में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में जब आपके अवधेश पासी साहब या अवधेश प्रसाद जी जीत गए, उसके बाद अयोध्या वासियों को जो गालियां पड़ी संघ परिवार के ट्विटर हैंडल से, मतलब वो पढ़ी नहीं जाती। और आज अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, उनको गालियां पड़ रही हैं क्योंकि उन्होंने जाकर के उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ कह दिया कि भैया धोखा हुआ इनके साथ। और उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद उनके पैर छुए हैं। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं ये क्या है? मतलब आप शंकराचार्य तक का भी आदर नहीं करेंगे, आप उनका भी आदर नहीं करेंगे जो वोटर्स हैं। आप वैसे कहते हैं कि वोटर जो है वो सर्वोपरि हैं, लेकिन फिर भी अयोध्या वासियों को आप गाली देंगे, ये क्या है यादव साहब? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये कहावत है, सबने सुनी है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। ये बात आप लोगों ने सुनी? जी, I think we just lost him. Are we getting him back? Are we getting Mr. Yadav back? No, Please try and get him back. Probably got a phone call. He's probably got a phone call, so try and get him back, please. I really would like to know what he thinks on this. All right, thank you very much. No, but really, Pradeep No, ji, that's a very pertinent question जो आपने पूछा है. It's a fantastic. I mean, you need an answer for that. सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन मुझे अभी तक याद है। Yes, yes. जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं भारत की जनता के सामने नतमस्तक हूं। Correct. आज उन्होंने हमें सिर्फ 2 सीट पर रखा है, लेकिन बहुत जल्दी हम 300 के ऊपर पहुंचेंगे। Yes, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा। Yes, yes. लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा। किसी ने सर वोटर्स को गालियां नहीं दी। यहाँ तो मतलब what is this? This is crazy. I mean, what is going on? The new militant BJP, the new militant जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं, now certain extent अडवाणी जी ने थोड़ा हार्डलाइन बना दिया था। जी, आज एक्सट्रीमली हार्डलाइन हो गया मोदी जी। जी यादव साहब बताएं, एक शंकराचार्य जी को गाली दे रहे? माफी चाहता हूँ, मेरा फोन कट गया था। नहीं सर, फोन आ रहा होगा आपका, बोलिए सर प्लीज। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आपको कि ईश्वर की लाठी जो होती है उसमें आवाज नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से आप सबने देखा अभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि अयोध्या हारने के बाद फिर बद्रीनाथ भी हार गई बीजेपी, और इस तरह सिलसिला चल रहा। जितने भी, चूंकि ईश्वर को केंद्र बिंदु बना के बीजेपी ने चुनाव लड़ा, और आप में वही सारी चीजें लगातार बीजेपी आ रही है, यानी कि वहां के लोगों का मोह भंग हो रहा है। बीजेपी को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि ना तो नफरत की पॉलिटिक्स चलेगी और ना ही भगवान और धर्म की राजनीति चलेगी। राजनीति चलेगी डेवलपमेंट की। हम 21वीं सदी में हैं, वैज्ञानिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूरा साइंटिफिक स्ट्रक्चर पूरे हमारे चारों तरफ आवरण में बन गया। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना बादल बना लिए हैं, नेचुरल अननेचुरल बादल बना लिए हैं, बारिश करा देते हैं, बारिश रोक देते हैं। कोई सूरज हो सकता बना लिया हो, कोई चांद बना लिया हो, तो हम उस तरफ पहुंच रहे हैं। ईश्वर की आस्था, मैं भी ईश्वर की आस्था को मानता हूं, मैं भी ईश्वर को मानता हूं। वो एक सर्वशक्तिमान ताकत है, उसकी पूजा हम सबको करनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स में करोगे तो निश्चित तौर पे बहुत दिन तक आप उसको नहीं धारण कर पाओगे। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि लोगों ने एक सही और सटीक जवाब दिया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा, ईश्वर तो अपना न्याय अन्याय जो होगा वो रिप्लाई कर देंगे भाजपाइयों को या जो भी गलत करेगा, लेकिन
हमारी और आपकी जिम्मेदारी, आर के जी प्रदीप जी, जिम्मेदारी ये है कि हम आप अपने संवैधानिक ढांचे को, लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे बचाएं। अगर हम इसको बचाने में असफल रहे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय और आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। मनोज यादव जी, मगर जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे बजाज साहब की 100 को लेके आओ और सरकार बना दो, मगर आज अखिलेश यादव जी ने उनको एक क्लास ले लिया उनका मौर्य जी का, जब उन्होंने कहा कि ना सरकार बड़ा है ना संगठन, पब्लिक वेलफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सत्ते के लालच में इस तरह, तो कैसे, बिकॉज मौर्य जी ने कहा था कि संगठन बड़ा है सरकार से, आज अखिलेश यादव जी ने इनको सीख दिया, क्या उन्होंने सब रास्ता बंद कर दिया, बोले कि मौर्य जी आप वहीं पर रहिए? देखिए, संगठन बड़ा, ये अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए एक शब्द है। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, लोग बड़े होते हैं। अगर उन्होंने आपको चुना, उन्होंने आपको अवसर दिया है तो आप उनके लिए काम करें। अगर नहीं काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जनता भूल जाएगी, और नहीं, अगर एक समय पे नहीं भूल पाएगी तो दूसरे समय पे भूल जाएगी। इस पूरी विकास की परंपरा को अगर कोई राजनीतिक दल गड़बड़ करेगा तो निश्चित तौर पे वो हमारे सिस्टम के लिए दिक्कत वाली बात होगी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तो यही कहूंगा कि चाहे वो जो भी हो नेता, जो भी सत्ता हो, उसको जनता के लिए काम करना चाहिए। सबसे बड़ी जनता होती है, जनता ही तय करती है कि कौन सत्ता पे बैठेगा। अगर उसके साथ धोखा होगा तो वो जनता भी धोखा देना जानती है। जी मनोज, मैं माफी चाहूंगा, मुझे आखिरी सवाल जल्दी से करिएगा क्योंकि मुझे निकलना है। सर, फाइनल क्वेश्चन। आज मुंबई में सम्मान हो रहा है, काफी आपके जो सांसद जीत के आए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मुंबई और महाराष्ट्र की जो समाजवादी पार्टी है आज सम्मान कर रही है आपके काफी जीते हुए सांसदों का, उसके बारे में एक शब्द प्लीज। देखिए, समाजवादियों का धमक और खनक बहुत जबरदस्त रहेगी हर जगह। मैं जिस जिले से आता हूं वो आपको एक लाइन में स्टोरी बता देता हूं। जब 1952 में या देश का जब पहला चुनाव हुआ तो मैं बाराबंकी जनपद को रिप्रेजेंट करता हूं, जो मेरा गृह जनपद है जी। तब जब नेहरू था, तब जब गांधी था, तब जब पूरा कांग्रेसमय था, तब भी हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले राम सेवक यादव जी सांसद हुए हमारे जनपद से जब पहला चुनाव हुआ। तो समाजवादियों की धमक और खनक अलग है, और फिर उत्तर प्रदेश के समाजवादियों का, बिहार के समाजवादियों का अपना एक स्ट्रक्चर है, और वो पूरे देश में जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। महाराष्ट्र की धरती को भी सलाम है, महाराष्ट्र की धरती को भी प्रणाम है। वहां गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबको बुलाया, सम्मान किया। हम लोकतंत्र बचाने का पूरा काम करेंगे, ये वादा हम आपसे करते हैं। आने वाले समय में लोकतंत्र और मजबूत होगा, और प्रजातंत्र में किस तरह जनता को उसका मान सम्मान मिले, उसके लिए भी हम काम लगातार करेंगे, मजबूती से करेंगे। यही समाजवाद हमको सिखाता है। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मनोज यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। Well, that was nice, Mr. Manoj Yadav. He's very well informed, very articulate, as you always describe him. Yes, and at the moment with us, Mr. Mukesh Gandhi from the Ajit Dada Pawar NCP. At the moment, Ajit Dada Pawar under a bit of pressure, but all the same, let's ask him. Mukesh Gandhi साहब, नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? Sir, fine, fine. क्या बात है सर, वंडरफुल. और सर एकदम आनंद, तो वाघनख आ गए सर, यहाँ पे वाघनख, छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघनख पहुंच गए आज जो महाराष्ट्र में। और जहां तक अजीत दादा पवार का सवाल है, ये जरा मिस्ट्री सॉल्व कर दें सर कि ऑर्गेनाइजर जो है, आरएसएस का माउथपीस है, वो बार बार ये क्यों लिख रहा है कि अजीत दादा पवार के साथ बीजेपी को कोई करार नहीं करना चाहिए था? ये देखिए, एक पूरी एक लाइन जो है ना, वो अलग रित से बीजेपी के कुछ झूठों में चल रही है, वो जाने। पर मुझे लगता है कि अभी वो सब सेटल हो गया है। अभी अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने दोनों ने मिलकर के देवेंद्र फडणवीस को यहाँ ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आपको तीनों को मिलके यूटी बना करके ये आने वाला असेंबली इलेक्शन लड़ना है। तो अभी क्या है कि एक बात ऐसा है कि जब पूरा ये जब गठबंधन जब टूटता है ना और कुछ बात नेगेटिव होती है, तब किसी ना किसी के ऊपर उसका दोषारोपण करना चाहिए। अभी बीजेपी की फेल्यूर को वो अजीत पवार के ज्वाइंट होने के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं?
देवेंद्र फडणवीस का जो डाउन सीटों का जो कम सम सीटें आई, तो उनका कारण उनका संगठन, उनकी बातें हैं, उसमें अजीत पवार को क्या लेना देना था। फिर भी अजीत पवार को जोड़ के कहते हैं कि उनके कारण हमारी सीट कम आई, ये गलत बात है। ये बीजेपी का एक ठराविक जो वर्ग है और दिल्ली की भी कुछ लॉबी है, वो लोग एक प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको मंजूर नहीं है कि अजीत पवार जैसा सक्षम नेता ये यूटी गवर्नमेंट में रह करके इनको आगे बढ़ाएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यही अजीत पवार यूटी गवर्नमेंट के लिए बिग एसेट हो जाएगा, बहुत बड़ा कैरिस्मेटिक लीडर हो जाएगा, और उनके सभाओं से, उनके आकर्षण से हमारी सारी यूटी गवर्नमेंट को वोट ज्यादा मिलेंगे, ये मुझे निश्चिंत लगता है। मुकेश गांधी साहब, यू नो व्हाट वी सॉ, बहुत सारे डिफेक्शंस बैक टू शरद पवार साहब, बहुत सारे आपके लीडर्स जो पुणे में थे, पिंपरी चिंचवड़ के थे, वहां शरद पवार के साथ जाके वापस जुड़ गए। तो एक फिर पवार साहब को, शरद पवार साहब को पूछा कि अजीत पवार जी को वापस आएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि बाकी लोग का मैं पार्टी तय करेगा, वह अजीत पवार इज कंसर्न, बिकॉज बुरे वक्त में यही पार्टी मेरे साथ खड़ा था, इनसे पूछ। तो हाउ डू यू सी, क्या एक वातावरण बन रहा है, बिकॉज लोग निकल के वहां ज्वाइन कर रहे हैं शरद पवार साहब को, ये आप कैसे देखते हो मुकेश गांधी साहब? देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि ये जो पिंपरी चिंचवड़ के कुछ लोग गए हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं है, वो एक्स कॉर्पोरेटर और एक दो जिला प्रमुख वगैरह का पदवीधर थे, वो लोग वहां गए हैं। इससे हमारी अजीत पवार एनसीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो एक प्रकार का प्रचार करते हैं और पत्रकार के मुंह में, शरद पवार के मुंह में डाल के उनके मुंह से बुलवाते हैं कि अजीत पवार को शरद पवार में जाना नहीं है, ये खाली एक एजम्पशंस, एक इल्यूजन्स खड़ा करने का काम हो रहा है। और अगर शरद पवार जी ने कहा भी है तो वो एज अ टर्म्स तो कहेंगे ही ना कि मैं अपने लोगों को पूछ के बताऊंगा, पर पूछ के बताएंगे, आप अपने लोगों से चर्चा कीजिए। पर अजीत पवार जी ने कहाँ ऑफर दी है, उनके कोई नेता ने हमारे कोर ग्रुप में से या हमारे कोई कार्यकर्ताओं ने कोई मीटिंग में कोई अपील नहीं की है कि हमको शरद पवार के साथ वापस जुड़ जाना चाहिए। हम जहां यूपी में है एनसीपी, बीजेपी और शिंदे जी के साथ में, वहां हम खुश हैं और वहां हम प्रोग्रेस करके एक नई रोशनी, नई दिशा, नया विश्वास हम जन समाज में महाराष्ट्र में खड़ा करके दिखाएंगे। ये हमारा ध्येय है और वो ध्येय की पूर्ति 100% होने वाली है। मुकेश गांधी साहब, दूसरी चीज है कि आप क्या कंफ्यूजिंग सिग्नल्स इस देश, महाराष्ट्र देश को नहीं दे रहे, बिकॉज पुणे में सब लोग एक साथ आए थे, भुजबल साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, अजित पवार, एवरीबॉडी वर टुगेदर। वहां भुजबल जी ने आलोचना किया शरद पवार जी का, कहा कि देखो शरद पवार जी लास्ट मिनट में सबको मना कर दिया कि ये ऑल पार्टी मीटिंग हो जाए और ओबीसी मराठा विवाद के बारे में चर्चा करे, और शरद पवार जी मीन्स उन्होंने क्लियर कट पवार साहब पे आरोप लगाया था। और हम लोग दूसरे ही दिन छगन भुजबल जी वहां शरद पवार जी के घर पर पहुंच गए सिल्वर ओक में, और बैठक हुआ, बातें हुए। तो क्या आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल नहीं भेज रहे हो? बिकॉज शरद पवार जी खुद कंफ्यूज है, बोले कि भुजबल जी मेरा बहुत तारीफ किया था पुणे में और बीड़ में, और अचानक आके मुझसे सवेरे आके मिलने का तो कैसे आप देखते हो? इज इट कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मुकेश गांधी साहब? देखिए प्रदीप जी, ये छगन भुजबल की राजनीति है और वो राजनीति में हमेशा एक और देखते हैं, दूसरी और गोल करते हैं और तीसरी और नजर लेकर बढ़ा करके आगे भी बढ़ते हैं। उन्होंने जो पूना की सभा में, हमारी एनसीपी की पहली जो प्रचार सभा थी बारामती में, वहां ये स्टेटमेंट जो उन्होंने पवार साहब के अगेंस्ट में किया, वो सही किया था कि अगर जब गवर्नमेंट ने, देवेंद्र फडणवीस, शिंदे जी ने और अजित पवार ने सर्वपक्षीय बैठक बुलाई और उसमें शरद पवार साहब के सब नेता और कार्यकर्ता जो है पदवीधर, वो सब आने वाले थे, पर एंड टाइम में उन्होंने कैंसिल किया और वो नहीं आए, तो वो गलत किया है, ये उनका छगन भुजबल जी का कहने का था, मतलब था। और कई दिनों से मैंने भुजबल जी को मिलता हूं, भुजबल जी को बहुत ही असंतोष है कि आज जो जरांगे ने जो मराठा की जो मूवमेंट खड़ी की है ना, वो मूवमेंट के कारण मुझे माइनॉरिटी, अपना ओबीसी का हक जताने के लिए और उनको कोई अन्याय न करना पड़े, इसलिए मैंने
मेरे ओबीसी के जो अन्य नेताओं के साथ में रह करके उनको एक पीठबल दिया है, एक पावर दिया है, एक ताकत दी है। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं, भुजबल कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर मराठा और ओबीसी का कोई झगड़ा होए। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था, भुजबल जी ने, कि आज मराठा ओबीसी के घर पे नहीं जाते, ओबीसी मराठा के घर पे नहीं जाते हैं, एक दूसरे के साथ में दुकान में नहीं जाते हैं, ये है वो है। माने कई प्रकार का एक लोगों के अंदर एक असंतोष खड़ा हो जाता है, एक विग्रह खड़ा हो जाता है, और कल आगे जाकर के वो विग्रह एक विग्रही आंदोलन में खड़ा हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। और भुजबल का मन बहुत बड़ा है, उसने समझ करके ही शरद पवार साहब को मिलने को गए, सामने से बिना आमंत्रण जाकर के 1 घंटा वेट भी किया। पवार साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी और उनको हाथ जोड़ के उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसमें कोई राजनीति नहीं है, पर मुझे तो लगता है कि भुजबल ने अपना ईगो बाजू पे रख के, हमारी पार्टी का भी कोई ईगो नहीं है ये दिखाने के लिए जाकर के शरद पवार साहब के पास, वो बुजुर्ग है, हमारे नेता है महाराष्ट्र के, तो नतमस्तक होकर के उनको कहा कि ये प्रॉब्लम हम सबको साथ में मिलकर सॉल्व करना चाहिए और उसका नेतृत्व आप करो। इतना बड़प्पन आज कौन सा नेता हमारे महाराष्ट्र में या देश में दिखाता है जो बड़प्पन छगन भुजबल जी ने दिखाया। मुकेश गांधी साहब, बट व्हाट आर वी लुकिंग एट? बिकॉज मनोज जारंगे पाटिल फिर कल से उपोषण पर बैठने वाले हैं। वो बोले कि, और जो एरोगेंस दिख रहे हैं कि 288 में उभा करायचं की पाडायचं याचा निर्णय आम्ही घेणार आहेत, हे डिसिजन आम्ही घेणार आहेत। और कल अगर उपोषण में जो उन्होंने कहा कि मैं कंटिन्यूस जाऊंगा, तो हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट? बिकॉज ही इज टेकिंग द क्रेडिट कि आपका गए बार लोकसभा में जो हार हुआ, बहुत सारा मराठा इशू भी बहुत सारा था, तो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट? बिकॉज ये और एक सरदर्द बन के आपके सामने, महायुति के सामने आ रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट, मुकेश गांधी साहब? नहीं, मनोज जरांगे के बारे में तो हम इलेक्शन के पहले से देख रहे हैं कि उनका एक कोई मिशन है, पूरे महाराष्ट्र को अंधाधुंध में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो सिर्फ मराठा की बात नहीं करते हैं, पर उनके हर स्टेटमेंट में उनका ईगो इतना प्रोजेक्ट होता है और इतनी जबरदस्ती से वो अपनी बात करते हैं, जैसे लगता है कि महाराष्ट्र के नेता वही है और महाराष्ट्र का पूरा भविष्य निर्माण करने वाले वो अकेले ही है। इस तरह से उनको स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए कि 288 सीट्स के ऊपर हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, जितना आपको मराठा लोगों का सपोर्ट मिला है, जिनका जनाधार आपको मिला है, तो आपको और नम्र होके विवेकपूर्ण बात करनी चाहिए। और शिंदे साहब ने, यूपी गवर्नमेंट ने आज कोटा भी मंजूर करवा 10% का करवा के दिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बैठने वाली चीजें उन्होंने प्रस्तुत की है, तो उनको टाइम तो लगता है ना। इतने साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पहले, उन्होंने क्या किया? और आज कांग्रेस की गवर्नमेंट भी होती तो भी जरांगे क्या ये स्टैंड लेकर के बात करते थे? नहीं करते थे। ये कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का एक जबरदस्त अनरेस्ट खड़ा करने वाला एक मराठा आंदोलन बना दिया इन्होंने। इसके पहले हमारे विनायक मेटे भी आंदोलन करते थे, उनका आंदोलन सिस्टमेटिक चलता था, कोई वर्ग विग्रह नहीं होता था, शांति से बातें होती थी। तो जिस तरह से जब से जरांगे ने अपने हाथ में लिया है विनायक मेटे को छोड़कर उनके एक्सपायर्ड होने के बाद में, तब से ये मराठा आंदोलन एक वर्ग विग्रह के अंदर फैल गया है और ये मुझे आने वाले कल में बहुत ही दुखद लगता है। मुकेश गांधी साहब, ये एक चीज है कि जो महायुति ने जो डिक्लेयर किया लाडली बहना स्कीम, लाडली भाऊ का स्कीम, ये जबरदस्त स्कीम्स है, एक जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, मगर आलोचना ही उतना हो रहा है। उद्धव ठाकरे जी का आलोचना, सुप्रिया सुले जी का आलोचना, जितेंद्र आव्हाड जी का आलोचना, संजय राउत का आलोचना कि 10,000 आप भाऊ को दे रहे हो, महिलाओं को 1500 दे रहे हो, 10,000 महिला बहन को देना चाहिए, ये कहां से फंड आएगा? 8 लाख करोड़ का डेब्ट है महाराष्ट्र में, ये इंडिफरेंस है, ये करने, तो ये आलोचना, तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये सोच समझ के निर्णय ले लिया है? स्टेट कर पाएगा? स्टेट में कैपेसिटी है इस चीज को करने का? हाउ डू यू सी मुकेश गांधी साहब, फंडिंग कहां से होगा? देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम की चर्चा में भी कहा था कि
शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर के जो ये योजनाएं दी है महाराष्ट्र को, ये महाराष्ट्र को लॉलीपॉप नहीं दी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने इलेक्शन के पहले फटाफट हम सबको इतना पैसा दे देंगे करके महिलाओं को लालच दी और कुछ करने वाले नहीं थे, और उनकी जो योजना थी उनके हिसाब से देश का कितना करोड़ों रुपया निकल जाने वाला था। हमारा जो फंड था, रिजर्व फंड है, वो भी यूज हो जाता था। यहां तक इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट ने लोगों ने बात की है। उस वक्त ये उद्धव गुट ने या कांग्रेस ने या ये लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, पर अभी ये जो हमारा रेवेन्यू है महाराष्ट्र का, आज 4 लाख करोड़ के ऊपर तो जीएसटी का कलेक्शन हमारे पास हमको आता है महाराष्ट्र को। उसके उपरांत जो जीएसटी का जो स्टेक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से हमको 40% तो महाराष्ट्र को स्टेक मिलता है पैसा का। और दूसरे हमारे महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण, व्यापार के विकसित होने के कारण और अन्य बिजनेस के कारण, एक्सपोर्ट के बात तो छोड़ो, पर इनके सबके कारण आज महाराष्ट्र को इतना जबरदस्त रेवेन्यू मिल रहा है। वो रेवेन्यू का एसेट एंड लायबिलिटी ये सब रखने के बाद में इन्होंने प्रोविजन किया है। और ये यूपी गवर्नमेंट सरकार सत्ता में वापस आए इसके लिए किया हुआ नहीं है, पर एक मानव हृदय से किया हुआ इमोशनल कार्य है। इनको विरोधियों के पेट में तकलीफ हो गई कि ये तो गिर गए थे लोकसभा में, ये कैसे खड़े हो गए और कैसे इतनी बड़ी योजना बना दी। अभी इतनी बड़ी योजना बनाई तो इनका विरोध तो करना ही चाहिए। बहनों को दिया तो बोलते हैं भाइयों को क्यों नहीं दिया, और भाइयों को दिया तो अभी कहते हैं कि बहनों को क्यों आप कम देते हो। अरे भैया, भाइयों को, बहनों को तो टोटल स्त्री समाज को 21 से 65 साल की उम्र की लेडीज को 1500 रुपया पर मंथ 18,000 रुपया देने की इन्होंने कमिटमेंट दी है। और वो देंगे रक्षाबंधन में, पहला किस्त इनको मिलेगा बहनों को जिन्होंने फॉर्म भरा और रजिस्टर किया है। और उन्होंने जो युवाओं को दिया है वो खाली स्टाइफन मनी जो होता है वो टाइप का मनी उन्होंने खाली जो शिक्षित एजुकेशन लेने वाले युवाओं को दिया है। माने वो मर्यादित है बजट, उसमें महिला के जितना बड़ा बजट नहीं है। फिर भी बस अच्छा काम मोदी करे या शिंदे करे या अजित पवार करे, बस इसका विरोध करो। और संजय राउत साहब को तो स्टाइल है उनकी कि वो हर बात को ट्विस्ट करके ही बोलते हैं, तो ये गलत बात है। ये जो किया है हमारे महाराष्ट्र के डेवलपमेंट कार्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, हमारे किसानों को जो मदद मिलनी चाहिए वो सारी बातें, और ये योजनाएं सब अच्छी तरह से चलेगी। और महाराष्ट्र के लोग भी अगर नहीं समझेंगे और सिर्फ ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के पीछे जाएंगे और महाविकास आघाड़ी को मत देंगे ना, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को एक बहुत अच्छा देने वाला शिंदे गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार, अजित पवार की जो सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की ये जो सरकार, यूपी सरकार है ना, ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो लोगों के हित में काम करती है। आज देखो, कोई छोटी सी भी घटना होती है ना, तो शिंदे साहब होंगे, अजित पवार होंगे या देवेंद्र फडणवीस है, वो पहले वो जगह पे पहुंच जाते हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। और कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू भी हो गया तो भी वो जाकर के लोगों को पनिश करने वाले को पनिश भी करते हैं, और जो उन्होंने अच्छा काम किया है उनकी सराहना भी करते हैं। ये हमारे यूपी गवर्नमेंट के अंदर ताकत है। You know, you're doing very well. मुकेश गांधी साहब, आपका जो कहना है, स्टडी है, it is fantastic. And you are saying महायुति will do definitely very good in the coming विधानसभा elections. मगर शंकराचार्य जी गए थे उद्धव ठाकरे जी के घर। उद्धव ठाकरे जी के घर जाके कहा कि injustice has happened to you. उद्धव जी के खिलाफ अन्याय हुआ है, और अन्याय, the ends of justice will be met only if उद्धव ठाकरे जी becomes the CM again. चीफ मिनिस्टर उद्धव जी वापस बनेंगे। तो ये क्या शंकराचार्य जी, एक स्पिरिचुअल लीडर, इस प्रकार से कहना, आप इसको कैसे देखते हो? हाउ इज इट? यू नो, ये स्पिरिचुअल लीडर कह रहा है कि अन्याय हो गया और लोगों को न्याय देना पड़ेगा सीएम बनाकर। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये शंकराचार्य, आज के शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य की पीठ को संभालने वाले शंकराचार्य कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए उनको। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने किया है वो बहुत ही कांग्रेस प्रेरित और पूर्वग्रहित
उन्होंने स्टेटमेंट किया है। आपको उद्धव जी को सत्ता पे लाना है तो उनके लिए योजना करो, सत्ता के लिए काम करो। आपको मैं एक अपनी पर्सनल बात बता दूं आज ओपनली, बिल्कुल कि मैंने जब बाला साहब जी के पास सत्ता नहीं थी, खाली कॉरपोरेशन में थी, तब मैं शिवसेना में था, तब मैंने एक बहुत बड़े आचार्य को लेकर के बाला साहब के घर पे, आज भी उद्धव जी को जाकर के पूछिए, मैंने 9 से 10 यज्ञ करवाए अलग अलग टाइप के सत्ता प्राप्ति के लिए, जो हमारे शास्त्रों ने कहा है, और उनके बाद में उनको सत्ता मिली है। और उसका हमने कभी प्रचार किया था क्या? हमने बाला साहब के घर पे जो पूजा चलती थी वो कोई टीवी पे भी दिखाई नहीं दी थी, कोई पत्रकार को भी मालूम नहीं पड़ा। और उद्धव जी जिस तरह से सत्ता प्राप्ति के लिए, और मैं हिंदू का बहुत बड़ा प्रवर्तक हूं ये बताने के लिए शंकराचार्य को बुलाते हैं, सबके सामने वीडियो के सामने पूजा करते हैं, उसका सत्व चला जाता है मेरे भाई, इसका सत्व चला जाता है, इसका सब्सटेंस जो है, इसकी जो मंत्रोच्चार की जो ताकत है ना, वो चली जाती है। जो भी उपासना करनी है, जो भी अनुष्ठान करना है, वो शांति से करना चाहिए। वो प्रचार प्रेरित होगा ना तो उसको साक्षात्कार नहीं मिलता, उनसे उनका काम नहीं होता है, काम बिगड़ता है। और शंकराचार्य जी को कोई हक नहीं है कि एक के फेवर में बोलो और दूसरे के अनफेवर में बोलो, और वो भी इतने कठोर शब्दों से। आज क्या हो गया, बद्रीनाथ में एक हमारे देवस्थान में 4 धाम की एक यात्रा के एक मेन स्थान है, हमारा बड़ा धाम है, तीर्थ धाम है, वहां भी कांग्रेस की राजकारण की पॉलिटिक्स चल रही है, वहां कांग्रेस के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये कांग्रेस हमेशा एक हिंदू धर्म को किस तरह से डिवाइड करे वो काम कर रहा है, और उसमें हमारे हिंदू के नेता, जबरदस्त हिंदुत्व के प्रेमी ऐसे उद्धव ठाकरे जी भी उनको सपोर्ट करते हैं ना, उसका मुझे और आम जनता को बहुत बड़ा दुख है। गांधी साहब, वी वांट टू अंडरस्टैंड इन नेशनल पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जी ने आज भी आरोप किया कि महंगाई मैन मोदी जी हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हर सीमा पर पहुंच गया है एकदम। फिर स्टैटिस्टिक्स देके कहा कि टमाटर 140 रुपया, अनियन 60, पोटैटो 50, जिंजर 300। तो एक कैंपेन राहुल गांधी जी जिस प्रकार से चला रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो कैसे इसको जवाब देंगे? बिकॉज ये बेसिक इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट। और क्या दिखने के लिए वो वीडियोस भी डालते हैं कि कलीना एयर इंडिया के एम्प्लॉयमेंट में 2000 नौकरी के लिए 25,000 लोग जमा हो गए। गुजरात में भरूच में कुछ 13 वैकेंसीज के लिए कितने लाखों लोग, बच्चे स्टैम्पेड हो गए वहां पर। यूपी में कुछ 60,000 पोस्ट के लिए 60 लाख लोग अप्लाई। तो ये कैसे आप उस चीज को चेंज कर पाएंगे? बिकॉज एक के बाद एविडेंस के बाद साथ जे रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इश्यूज में थोड़ा करना बाकी है। गांधी साहब देखिए प्रदीप जी, राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के समय से महंगाई बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो कांग्रेस शासन के अंदर क्या हालत थी, उनका स्टेटिस्टिक्स जरा उनको बोलो ना, निकालें। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उस वक्त कांदा का, अनियन का क्या भाव था, और क्या किसानों के आंदोलन हुए थे, और क्या बात हुई थी, और कितने किसानों ने सुसाइड किया था। शरद पवार साहब ने बड़ी योजना की, 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ किया। फिर बाद में भी क्यों उन्हीं के काल में क्यों किसानों ने आत्महत्या बंद नहीं की, क्यों नहीं बंद हुई? ये क्या है कि हमारे देश में आज नरेंद्र मोदी जी ने हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ आज जबरदस्त किया है, पर साथ में मुझे पता है कि 40% जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में, और 20% जो है वो स्किल्ड वर्क में, माने इंक्लूडिंग आईटी जॉब और सर्विस जॉब जो होते हैं, इसमें आज एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम मिल रहा है। उसका बहुत बड़ा असंतोष देश में है। उसको निपटाने के लिए मोदी जी स्टार्टअप, ये वो सारी कितनी योजनाएं कर रहे हैं, कितने काम अलग अलग ढंग से उठा रहे हैं, और मैक्सिमम यंगस्टर्स को वो काम देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पर आज तक कांग्रेस ने, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप ने, शरद पवार साहब ग्रुप ने कभी भी कोई ऐसी योजना रखी
गवर्नमेंट के सामने कि इनके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आप ये काम करो, ये स्कीम लाओ, वो स्कीम लाओ, बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ बाद में एकदम बिरबली पुलाव बना के लोगों के सामने रख देना है और आक्रोश 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 करके लोगों में एक आंदोलन जगाना है और नेगेटिविटी खड़ी करनी है। उससे देश का कोई एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा नहीं। एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाने के लिए देश के सभी लोगों को साथ में मिलकर पार्टियों को काम करना पड़ेगा और जो इकोनॉमिक ग्रोथ आज एस्टैब्लिश किया है, जो आज हमारी जो गोल्ड रिजर्व है, हमारा रिजर्व फंड है, आरबीआई का पूरा रिपोर्ट देखो, हमारा रेपो रेट आज कितना स्ट्रांग है हिंदुस्तान का। आज इतना कोरोना आया, इतने प्रॉब्लम आए हमारे देश के सामने, इसके बीच में भी नरेंद्र मोदी जी ने जो कन्विंसिंग और इफेक्टिव जो काम किए हैं ना, उनसे ये कांग्रेस वालों के और इंडी गठबंधन वाले के लोगों के पेट में दुख रहा है। और दूसरी बात है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है और आज कुछ यूपी में कुछ नेगेटिव बातें स्ट्रक्चर में कुछ हुई, उसके कारण कुछ सीटें कम आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जो हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का जो प्रचार और प्रसार चल रहा है वो कम हो जाएगा और इसके कारण लोग मोदी जी से हिंदू भी लोग विमुख हो गए। ये जो इनका कहने का है ये भी गलत है। सब आज साथ में हैं। एक नेगेटिव नरेशन इतना प्रभावी बना के इन्होंने छोड़ दिया और एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रॉब्लम था उनके कारण मोदी जी की सीटें भी कम आई, वो बात अलग है, अलग चर्चा का विषय है। पर मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी हैज नो राइट to talk against Narendra Modi ji's economical policy. He has no right to talk about the unemployment और बड़े बड़े पिक्चर तो आप अपने कांग्रेस से लेकर के नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी और एंड तक के मनमोहन सिंह तक के हम फिगर ला के लोगों को दिखा सकते हैं। गांधी साहब, राहुल गांधी जी अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लेकर हमेशा घूमता रहता है और कांग्रेस के जितने लॉयल कांग्रेसमैन हैं सब वो संविधान का किताब लेकर घूमता है और कहेंगे संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, 10 साल में अनघोषित अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो हैज दिस मोटिवेटेड अमित शाह मोदी जी को डिक्लेयर करना संविधान हत्या दिवस 25 जून एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे। वो सब इंदिरा जी 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया था, 1 करोड़ लोगों का नसबंदी किया। तो हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग ऑन, राहुल गांधी जी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी? संविधान खतरे में है सर, संविधान खतरे में नहीं है पर कांग्रेस खतरे में है, इसलिए उन्होंने संविधान को खतरे में डाला है। और जिस तरह से बीजेपी ने एनडीए गवर्नमेंट ने ये जो संविधान का जो 25 जून का जो कार्यक्रम बनाया है वो सही है। आज मैं आपको एक दूसरी पर्सनल बात ओपन करता हूं। जब इमरजेंसी लगी थी ना प्रदीप जी, बिल्कुल, तब आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं पेडर रोड रहता हूं, मेरे बाजू में जसलोक हॉस्पिटल है। हाँ। और वहां जयप्रकाश नारायण जी किडनी का डायलिसिस का कार्यक्रम वहां उनका चलता था। उस वक्त में मेरे पिताजी भी बीमार थे, उनको भी हार्ट अटैक सीवियर आया था। तो मैं रोज हॉस्पिटल में जाता था, तो पिताजी के पास तो मेरे और भाई बहन भी रहते थे, तो मैं जयप्रकाश नारायण जी के पास जाकर के बैठता था और मैंने जयप्रकाश नारायण जी को पर्सनल पूछा कि सर आपको ये किडनी का प्रॉब्लम जो आया वो कैसे आया? तो आपका पहले से आपका कोई लीवर या किडनी कुछ वीक थी? कुछ नहीं था। तो बोलता है आई वॉज वेरी हेल्दी ड्यूरिंग ऑल माई लाइफ एंड माई लाइफ स्टाइल इज वेरी सिंपल, आई ईट वेरी रेग्युलर फूड एंड सिंपल फूड, बट जेल में मुझे क्या इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद में मेरी किडनी फेल हुई है और आज उसकी मैं सजा भुगत रहा हूं। और मुझे एक बात उन्होंने बताई कि बेटा जिंदगी में जो भी काम करना है अच्छी तरह से काम करो और अपनी हेल्थ अच्छी रखो, क्योंकि कब पिछली उम्र में भी जब आपका समय आएगा आपको काम करने को मिलेगा कोई देश के लिए, धर्म के लिए, और उस वक्त आपकी तबीयत अच्छी नहीं होगी तो आप फेल हो जाओगे। आज मैंने इतना सारा जन आंदोलन खड़ा किया पर आज मेरी हेल्थ डैमेज हो गई। उन्होंने कभी भी नाम नहीं दिया इंदिरा गांधी जी का, उन्होंने डैमेज की है, पर उनके कहने का मकसद क्या था कि सिस्टेमेटिक इस तरह से आप कितने लोगों की स्टोरी जब सुनोगे ना सर, तो वो कुछ प्रकाश में आई नहीं है। बीजेपी
क्या करती है कि किताब खोलती है पर आधा आधा पेज खोलती है, पूरा पेज खोल देना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या अत्याचार किए इमरजेंसी के टाइम में, और वो कौन सा अत्याचार नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतने सालों में कुछ नहीं किया है। कोई धर्म, हिंदू मुसलमान धर्म के लोगों को कोई तकलीफ नहीं दी है, सबको साथ में रखा है, सबका विकास किया है, सबको मदद की है। और फिर भी अरे आज ये कोरोना के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी का मिशन नहीं होता तो आज हमारा देश कौन सी परिस्थिति में आ जाता था, वो लोग समझते हैं फिर भी भूल जाते हैं और हाथ में लिए हुए एक अभियान को सपोर्ट करते हैं, वो हमारा दुर्दैव है। मुकेश गांधी साहब, थैंक यू वेरी मच। बजाज साहब had to unfortunately leave us, थोड़ा प्रॉब्लम हो गए थे, बट इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्कशन विद यू। एनलाइटन किया बाला साहब ठाकरे जी से लेके इमरजेंसी, जयप्रकाश नारायण, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। एक ज्ञान जो दे दिया, इट इज वेरी वेरी, एंड एज यू सेड हेल्दी डेमोक्रेसी, जो आपने गाइडेंस दिए कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चाहिए, इट वाज फैंटास्टिक। थैंक यू मुकेश गांधी साहब, थैंक्स फॉर द शो। मैं अंत में इतना ही कहूंगा और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में प्रगति हो, समृद्धि हो और संप हो, क्योंकि जो मोदी नाम का एक मसीहा आया है और उसने जो अभियान खड़ा किया है ना, उसके साथ में लोगों को जुड़ना चाहिए। और नीचे के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको अभी अपना अपना ईगो बाजू पे रख करके, अपना अपना स्वार्थ बाजू पे रख करके ये लड़ना झगड़ना, और जो यूपी में चल रहा है ऐसा कहीं भी, महाराष्ट्र में भी नहीं चलना चाहिए, गुजरात में भी या कोई स्टेट में नहीं चलना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी जी को हमें पूर्ण सहकार हमारे कार्य पद्धति से देना चाहिए, वही उनके लिए देश की सेवा है। इतना ही मैं मानता हूं। जय हिंद, जय वंदे मातरम। थैंक यू। यू आर अ गांधीयन, मुकेश गांधी साहब, यू आर अ गांधीयन ऑल योर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। We'll continue with Bharat Singh ji, and shortly we'll be joined by the BJP guest also. Can we go to Bharat Singh ji? Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. नमस्कार नामबियार जी। भरत सिंह जी शॉर्टली बीजेपी के प्रवक्ता भी रहेंगे, स्पोक्स पर्सन ज्वाइन करेंगे हमको। हम लोग शुरुआत करते हैं सर, आज कांग्रेस का अहम मीटिंग हुआ यहाँ पर और बहुत सारे चर्चा हुआ युति के बारे में, किस प्रकार से आगे जाएंगे, एमवीए का क्या होगा, क्या रोल होगा, और खास करके आपने ये भी कहा कि किस प्रकार से जो क्रॉस वोटिंग हुआ था परिषद में, उसमें भी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। थोड़ा इस पे ज्ञान दीजिए कि कैसे हुआ आज का मीटिंग, जिस प्रकार से हुआ कांग्रेस के। देखिए, पूरे महाराष्ट्र से, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की एक जो है मीटिंग थी और बहुत ही सफल मीटिंग हुई। बहुत अच्छा वातावरण था मीटिंग का और सभी कार्यकर्ता खुश थे। अब चुनाव का माहौल है तो बहुत लोग चुनाव में टिकट भी मांगना चाहते हैं, बहुत लोग समझना चाहते हैं कि कौन सी सीट किसको कहाँ मिल रही है। तो ये सब थोड़ा सा अभी समय लगेगा। पहली मीटिंग थी, सभी कार्यकर्ताओं को हमें भी सुनना था कि कार्यकर्ताओं के दिल की बात क्या है। मन की बात तो मोदी जी करते हैं, हम तो दिल की बात सुनते हैं। तो कार्यकर्ताओं के दिल की बात सुने हम, और हमारे नेता सुने, और आगे कैसे रणनीति होगी, क्या होगी, वो सब एक एक जैसे जैसे आगे मामला बढ़ेगा वैसे वैसे आप मुझसे पूछेंगे, मैं बताते जाऊंगा। और रही बात 7 विधायकों ने जिसने क्रॉस वोटिंग की है, उसके सामने हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी ने बड़े क्लियर तौर और खास क्लियर और एकदम सख्त लहजे में कहा है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हाईकमान जो है वो उसका डिसीजन क्या लेता है, उनको सस्पेंड करता है कि उनको जो है क्या करता है, ये तो हाईकमान समझेगा। लेकिन हमारी तरफ से ये कहे कि जिसने भी इस तरह से गलतियां की हैं और जानबूझ के की है, तो वो उसको अगर हम पनिशमेंट नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, तो ये गलत मैसेज जाएगा। ऐसा एक है। अब देखते हैं कि वो क्या होता है, अब वो तो हाईकमान तय करेगा। विल बी जॉइंड बाय अजय पाठक फ्रॉम द बीजेपी, ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। भरत सिंह जी, दूसरा बात यह है कि महंगाई मैन मोदी जो राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस चीज प्राइस राइज को कंट्रोल नहीं कर पाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार को, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये और आंकड़े जो जिस प्रकार से दिए कि टमाटर 140 रुपया किलो, अनियन 60 रुपीज, पटेटो 50, जिंजर 300। तो क्या वाकई में बीजेपी
एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कंट्रोल नहीं कर पाए। एनडीए आज भी प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, रोजगार कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दे नहीं पा रहे। भरत सिंह जी, देखिए मोदी है तो मुमकिन है। अगर सब कुछ भाजपा कहती है मोदी है तो मुमकिन है, तो महंगाई पे भी कहना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। ये तो उनका नारा होता है ना, नारा होना भी चाहिए। पिछले 10 सालों से ये 11वां वर्ष शुरू हो गया है, साल शुरू हो गया है, और हर साल दर पर दर महंगाई जो है देखिए हर साल बढ़ती जा रही है, कम कहाँ हो रही है। कम करने का रोना जो है वो तो ये रोते हैं कि हमने सब कुछ कम कर दिया है। अगर कम कर दिया है तो 140 रुपए में टमाटर क्यों कोई ले रहा है? इतनी महंगाई क्यों जो है बढ़ गई है? सब्जियों के भाव 100 रुपए के नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? यानी कि मैं एक ही चीज कहूंगा और उसी में सब कुछ छुपा है कि मोदी है तो मुमकिन है। We are joined by Bharat Singh ji. We just interrupt. Ajay Pathak ji, welcome to the show. Ajay Pathak ji from the BJP Bharatiya Janata Party, the spokesperson. Pathak साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ भरत सिंह जी है, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के। तो बोल रहे कि बेरोजगारी आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप प्राइस राइज कंट्रोल नहीं कर पाए, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी का आरोप सही है कि महंगाई मैन मोदी, महंगाई मैन मोदी ये बुलाते हैं, कांग्रेस का कैंपेन है। पाठक साहब, हाँ, ये तो बुलाएंगे ना, इनका तो नैरेटिव खड़ा करने का काम है, ये करेंगे। इनसे पूछिए इन्होंने कर्नाटक में क्या किया। कर्नाटक में जाते ही 3 रुपया डीजल बढ़ा दिया। जैसे हिमाचल में इनकी सरकार बनी वैसे 3 रुपया डीजल बढ़ा दिया। आज सबसे पूरे प्रदेश में उठा करके देख लिए, सबसे ज्यादा महंगाई दर कर्नाटक में है। कर्नाटक की स्थिति कितनी खराब हुई है। आज अभी कल की एक रिपोर्ट आई है कि वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी की पूरी हमारी जो इकोनॉमी हो वो उसका बंटा बैठ गया है। रोज पैसे मांग रहे हैं इनसे, उनसे, केंद्र सरकार से। इनका काम ही है निगेटिव चीजें करना और निगेटिव चीजें फैलाना, झूठे और फाल्स वादे करना। सरकार ने 10 साल पहले ये जिस स्थिति में भारत को छोड़ करके गए थे, आज दुनिया में हम सबसे मजबूत स्थिति में है, सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी हमारी है। इन्होंने जो भारत को दे करके गए थे वो तो पूरा इनका प्लान था कि भारत को दिवालिया कर दो। उस दिवालियापन को देकर के भारत 2014 में इनकी विदाई हुई थी, और तीसरी बार इसीलिए इनकी विदाई हुई है। तीसरी बार भी इनकी सरकार इसलिए नहीं बन पाई है। यहाँ का युवा, यहाँ का बाकी के सब मजदूर, बाकी सभी लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस आती है तो कांग्रेस इस देश में सिर्फ और सिर्फ जहां इनकी सरकारें हैं वहां इन्होंने क्या किया। तो हिमाचल में 3 महीने के अंदर 3 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। आज जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की शासित प्रदेश है वहां डीजल का दाम देख लीजिए और इनके यहाँ देख लीजिए, वहां महंगाई देख लीजिए, इनके यहाँ महंगाई देख लीजिए कि क्या स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ फाल्स बोलने वाले लोग हैं। राहुल गांधी का कोई नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। तीसरी बार एनडीए की बहुमत की सरकार बनी है, ये इसी तरह की चीजें करते रहेंगे। इससे जनता के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदीप जी, भरत सिंह जी आपने सुना अजय पाठक साहब कहते मोदी जी ने हर वो काम किया है जो गरीब कल्याण योजनाएं है, जो गरीब जो मिनिमम जो राशन फ्री देने वाली बात है, तो अलग अलग गिनाए। तो भरत सिंह जी, क्या यह आरोप आपका बेबुनियाद है, महंगाई मैन मोदी? नामियार जी, देश की जनता भाजपा पे हंस रही है। जिस तरह से मैं हंस रहा हूं उसी तरह से देश की जनता हंस रही है। देखिए कितनी सफाई से पाठक जी झूठ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कर्नाटक में सबसे ज्यादा महंगाई है। अब मुझे बताइए नामबियार जी कि केंद्र की सरकार जो है वो कर्नाटक का पूरा पैसा रोक के बैठी है। इनके जहां सरकारें इनकी है जिस राज्य में, उनको पूरा पैसा मिलता है, मगर जहां जहां हमारी सरकारें हैं पूरा पैसा रोक दिया जाता है। तो अगर पेट्रोल और डीजल पे 2 रुपया 3 रुपया बढ़ाया है तो सरकार भी चलानी है, वहां का राज्य भी चलाना है। अरे हमने तो 70 रुपए पे जो है पेट्रोल और डीजल छोड़ के गए थे महाशय, आप लोगों ने जो है उसको 106 रुपए पे पहुंचा दिया। तो ये आप जो है ये अपने अंदर झांक के देखिए। आप ये कह के आए थे ना 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये तो आपका कहना था ना। तो ये नारा कहाँ गया? पिछले 11 सालों से देश की जनता पाठक जी ये सुनना चाहती है कि बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले व्यक्ति आज कहाँ छुपा रहे हैं अपने मुंह को।
वो कम से कम सामने आके बताए कि महंगाई कहाँ है और महंगाई का माँ। याद है आपको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये कहते थे कि महंगाई का माँ भी याद नहीं आता है मनमोहन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं पाठक जी आपके माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री को क्या वो माँ याद है, क्या अब याद आती है क्या? रात को सपने में भी आपको सताती है कि नहीं सताती है? देश की गरीब जनता के खीसों पे डाका डालने वाले आज टीवी पे बैठ के ये महंगाई के जो है कह रहे हैं कि महंगाई सब कुछ अच्छी हो गई और हमारी सरकार अच्छी है। आपकी सरकार जो है इसी वजह से, और आप कौन सा दावे से कह रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है? एनडीए की सरकार चल रही है। अरे पहली बार 10 साल के बाद नामबिहार जी किसी ने सुना कि एनडीए की सरकार, नहीं तो मोदी की सरकार चलती थी। भूल गए पाठक जी? मोदी की सरकार आप कहते थे। अरे आपको बेबस होना पड़ा क्योंकि 2 बैसाखी 2 बाबुओं ने आपको 2 बैसाखी दे के रखा है। जिस दिन वो बैसाखी हटेगी उस दिन धड़ाम से सरकार गिरेगी और मोदी जी बचा नहीं पाएंगे। तो पाठक साहब आप सुने, बोला कि जस्टिफाइड है हर चीज। उन्होंने आंकड़ा दिया कि टमाटर का क्या रेट है, उन्होंने दिया कि जो अलग अलग सब्जी है उनका क्या रेट है। आप कंट्रोल अनियन कांदा का 60 रुपया, पोटैटो 50, जिंजर 300 रुपया, परवल 75, ये बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर व सोशल मीडिया में हाईलाइट कर दिया कि ये महंगाई है इस प्रकार से। और मोदी जी, पाठक साहब कुछ बोलना चाहेंगे जो भरत सिंह जी ने आरोप लगा दिया आप पे? देखिए नामबिहार जी, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है ना। कांग्रेस अपनी स्टेट की बात ही नहीं करेगी। कांग्रेस मोदी आखिर 10 साल बाद भी फिर क्यों मोदी जी को उन्होंने चुना? 240 सीटें, अगर इतना सब कुछ ठीक नहीं था तो 240 सीटें इस देश में इसी देश की जनता ने चुन के दिया ना। आपको तो 99 दिया। इतना नैरेटिव खड़ा करने के बाद भी संविधान बदल देंगे, महंगाई दुनिया भर की है। अटल जी जब छोड़ के गए थे तो 54 रुपए था डीजल, आपके समय में 72 रुपए हो गया। और उसके बाद आज तक आप लोगों ने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने और खसोटने के अलावा किया क्या? जहां आपकी सरकार वहां आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम का काम करते हैं। इसीलिए भूपेंद्र बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने उठा के फेंक दिया। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए पाठक साहब, उसके बाद भरत सिंह जी बोलेंगे। बोलिए पाठक साहब। भूपेश बघेल की सरकार को कांग्रेस ने एटीएम बना दिया था कि जहां जरूरत पड़े भूपेश बघेल से 1800 करोड़ रुपया उनसे ले लो, जगह जगह इस्तेमाल करो कांग्रेस का नैरेटिव सेट करने के लिए। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को उठा के फेंक दिया कि ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाहिए। कर्नाटक में इन्होंने गलती से वहां की जनता ने जो इनको चुन लिया है, आज वहां की जनता पछता रही है कि इन्होंने किस तरह की सरकार चुन ली। उसी प्रकार से जब हिमाचल में सरकार चुनो, हिमाचल में सरकार चुनते ही इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार वहां बढ़ाया, तो लोकसभा के चुनाव में 4 की 4 सीटें हार गए, समाप्त हो गए। और बैसाखी की जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, एनडीए आज से नहीं है। आपको ध्यान ही नहीं होगा कि एनडीए कब से चल रहा है। दूसरी चीज, बैसाखी पे तो आप हैं, बैसाखी में तो कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी की जहां डायरेक्ट फाइट हुई है 227 जगह, वहां आप 16 जगह जीत पाए, बाकी जगह बीजेपी ने जीत लिया। आप कहीं समाजवादी पार्टी की बैसाखी बने, कहीं लालू यादव की बैसाखी बने। जवाब दे दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। कहीं आपने बहुत लंबा नहीं होता है, सारे सवालों का जवाब तो दे दीजिए ना पाठक जी, सारे सवालों का जवाब तो दे दीजिए ना। आपके पास मध्य प्रदेश, अरे एटीएम से चालू करता हूँ सीटों तक आ जाऊंगा, महंगाई को चालू करता हूँ सड़क तक आ जाऊंगा। आप बताइए ना छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आई, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आई? आप बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र में मैं बैठा हूँ, महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीट आई? 1-1 फाइट, जहां भाजपा थी वहां कांग्रेस थी, 1-1 फाइट हुआ है। आप 9 सीट आए, हम 14 सीट आए, हम 9 सीट आए और हम 14 सीट आए। जो है 48 और 45 सीट की बात करते थे, पूरा साफ कर दिया। 17 जगह है, 227 जगह में 17 जगह बीजेपी ज्यादा जीत पाए, बाकी की जगह तो हार गए ना। दिया अभी आधा हाफ है, आगे साफ हो जाएंगे। आप पूरी बताओ, जवाब तो ले लो, सुन तो लो, जवाब तो ले लो। नैरेटिव की बात करने वाले,
सिर्फ महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र ही देश नहीं है ना, देश तो 227। महाराष्ट्र पे बात हो रही है, महाराष्ट्र पे बात हो रही है, महाराष्ट्र पे बैठे हैं। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, 48 सीट लाने वाले 48 सीट लाने वाले 9 पे सिमट गए। 48 सीट का सपना देखने वाले, 45 का सपना देखने वाले जो 9 सीट पे सिमट गए। क्या हो गया भैया, क्या हुआ? और अभी तो 9 पे सिमटे हो, अभी विधानसभा आ रहा है, विधानसभा में 25 सीट पे सिमट जाओगे, ये भी आपको बता देता हूँ। इस विधानसभा में 25 सीट पे सिमट जाओगे, नहीं पाओगे। हम तो 125 से भी ज्यादा पाएंगे। जो आप लोग जो आप कितनी सीटें पाए, चाहे वो पिछली बार बताओ कितनी सीटें पाए, शिवसेना के साथ किया, ये महाराष्ट्र की जनता आपको सबक सिखा के रहेगी। आपने जो महाराष्ट्र में किया है, चाहे वो एनसीपी के साथ, चाहे वो खड़ा करने का काम करते हैं। अब बता रहा हूँ, इसीलिए सब जवाब ले लीजिए। नैरेटिव की बात करने वाले, अरे आप संविधान बदलने वाले व्यक्ति हैं, आप संविधान बदलने की बात करने वाले लोग हैं, संविधान बदलने की बात करने वाले लोग आप हैं, और आप बताते हैं नैरेटिव सेट करने के लिए। नैरेटिव सेट तो आपने 2014 में किया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सबको जो है खुशहाली मिल जाएगी, राम राज्य आ जाएगा। ये सब तो सेट करने वाले आप थे ना। वो राम राज्य लाए कि पहली बार मंदिर जो बना है, पहली बार इसमें जो है वो राम जी के सर से लेके नीचे तक पानी ही पानी है, वो आपने राम मंदिर बना के दिया। और मैं क्या किया बताइए ना, इसीलिए राम जी ने अयोध्या हरा दिया, इसीलिए राम जी ने अयोध्या हरा दिया। अयोध्या में आपकी हालत क्या हुई? अयोध्या पांडे जी, इसीलिए अयोध्या में बीजेपी क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में क्या हुआ? मिलकर के बीजेपी की बराबरी नहीं कर पाया। क्या हुआ? अयोध्या में हार हुई कि नहीं हुई? राम जी ने ये दिखाया कि नहीं आपको? राम जी ने कहा है ना, विधानसभा में राम जी ने ये कहा है कि आपने जो है हमको नहीं लाया, विधानसभा में बीजेपी की लीड है, हमने आपको पता नहीं है। ये राम जी ने आपको भरत सिंह जी महाराष्ट्र में आते हैं, तो आप आज जो स्कीम्स लाए हैं भरत सिंह जी, लाडली बहन स्कीम, लाडला भाऊ स्कीम, तो ये एक गेम चेंजर है। आपके प्रति आलोचना करें, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, मगर वहां पर आलोचना हो रहा है कि ये होगा नहीं, ये प्रोवाइड नहीं किया, 10,000 स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए था भाई। तो कैसे आप भरत सिंह जी इस स्कीम को कैसे देखते हो? आलोचना क्यों, अगर लोगों को पैसे मिल रहा है तो? पहले मैं तो शुरुआत कर लूं 2-3 चीजों ने, जो पाठक जी ने 2-3 चीज का नैरेटिव की बात किया था, उस पे जवाब दे दूं। हाँ। एटीएम पे बात किया था, उस पे जवाब दे दूं, फिर इस पे लाडली पे भी आ जाएंगे। देखिए नैरेटिव सेट की जो बात कर रहे हैं, देश की जनता के सामने अब ये रोना रो रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत नैरेटिव सेट किया, इंडिया ने नैरेटिव सेट गलत किया, संविधान के बारे में गलतफहमी फैलाई। देखिए कोई गलतफहमी नहीं फैलाई नामगियार जी, इनके ही सांसद, इनके ही मंत्री, कर्नाटक से लेके राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश के जो सांसद लड़ रहे थे, मंत्री जो थे, वो सब लोग ने कहा कि 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो कहां से हमने नैरेटिव सेट गलत कर दिया? इन्होंने नैरेटिव सेट 2014 में किया था गलत कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, और जो है महंगाई एकदम साफ कर देंगे, महंगाई पूरा एकदम खत्म कर देंगे और राम राज्य लाएंगे। तो ये तीनों में लाने में ये विफल हो गए। यही वजह थी कि इस बार मोदी जी की हवा, जो बोलते ना कि मोदी जी के नाम पे जीते थे, कैसे कैसे बच के निकले हैं मोदी जी, ये पाठक जी को भी पता है। 1.5 लाख से बहुत मुश्किल से जीते हैं, और वो भी दोपहर तक जो है पीछे चल रहे थे। दूसरा, इन्होंने कहा एटीएम की बात, करप्शन की, भूपेश बघेल की याद दिला रहे थे। कर्नाटक भूल गए, 40% की कमीशन पेटीएम की सरकार चल रही थी, वो उसी वजह से तो कर्नाटक की जनता ने उठा के आपको फेंक दिया ना वहां से। तो आप जो एटीएम और पेटीएम की बात मत करिए, क्योंकि आपका पेट बड़ा है, और वो पेट जो है अदानी अंबानी के लिए रखा है आपने। तीसरा, आपने कहा कि लाडली बहन योजना की जो आपने बात किया, मैं आपको बताऊं, कोई भी स्कीम आप लाते हो
तो उसको रेगुलर, ये सिर्फ चुनाव के लिए लॉलीपॉप नहीं होनी चाहिए कि चुनाव जब आ गया है तो 2 महीने के लिए लाडली बहन योजना ला दिए, बहना ला दिए, फिर उसके बाद में अब भाऊ योजना भी लेके आएगा, लाडला भाऊ भी लेके आ गए, बहुत अच्छी बात है, लाइए तो सही, लेकिन क्या ये उसका हश्र यही होगा कि आपके खाते में जो 15-15 लाख रुपए बता जो कहने वाले व्यक्ति थे वो 15 लाख रुपए तो आए नहीं, लेकिन शायद चुनाव खत्म होने के बाद नामबियार जी, हमारे पाठक जी अच्छे मित्र हो सकते हैं, हम अच्छे मित्र हैं, आए और टीवी पे कहें, टीवी पे इनको बोल दिया जाए जाके कहने के लिए कि पाठक जी आप जाके कह दीजिए कि यह एक जुमला था, ये जुमला इसलिए था क्योंकि चुनाव का वक्त था, तो जुमला मुझे छोड़ना था, 1-2 महीना अगर आपके खाते में आ गया तो उतना ही बहुत बड़ी बात है। कोई भी चीज होता है उसका जो है रेगुलर जनता को मिलना चाहिए। क्या ये विश्वास दिलाते हैं? क्योंकि इनका विश्वास है ही नहीं ना देश की जनता को, इन्होंने जो भी वादा किया वो झूठा वादा किया, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में इनको नकारा है। महाराष्ट्र की जनता ने ये कहा है कि यहाँ पे भेदभाव नहीं चलेगा, यहाँ पे भाई बहन की लड़ाई नहीं चलेगी, जो आप लड़ाना चाहते ये नहीं होगा, आप कहे चाचा भतीजे को लड़ाना चाहते ये नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और यही वजह है भरत सिंह जी, भाजपा को 9 सीट मिली है। हाँ भरत सिंह जी बोलिए पाठक साहब। जहां तक बात कर रहे हैं लाडली बहनी योजना की या एटीएम की बात कर रहे हैं, इनको तो पता है कि एटीएम की वजह से सरकार इनकी चली गई, भूपेश बघेल की एटीएम की वजह से ही उनको निकाल करके फेंक दिया कि कांग्रेस के 10 जनपद के एटीएम बने हुए थे भूपेश बघेल, और निकाल करके फेंक दिया। कर्नाटक की जनता तो पछता रही है कि हमने किस तरह के लोगों को चुन दिया यहाँ पे, कि वो लोग पहले बोले कि हम फ्री में महिलाओं को बस की सेवा देंगे, अब उसी पे 25%, अभी तो कल की रिपोर्ट आई है कि उस पे 20 से 25% उसका किराया बढ़ाने वाले हैं बसों का। अभी कल की रिपोर्ट है कर्नाटक की, 20 से 25% उसका किराया बढ़ाने वाले हैं। दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं लाडली बहना योजना की, मध्य प्रदेश में हमारी योजना चल रही है, हमारी योजना इस तरह से नहीं है खटाखट 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 खटाखट, वो खटाखट भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो अस्थायी किया और वो चल रहा है। आपने गंगा जल लेकर के खटाखट खटाखट मध्य प्रदेश में कसम खाई थी, पर अब फिर बीच में बोलने लगे। आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। भरत सिंह जी सुनिए, आप राहुल गांधी की तरह खटाखट बीच में मत बोलिए। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में गंगा जल लेकर के कसम खाई थी कि पहली कैबिनेट में खटाखट किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। 15 महीने की सरकार चली, विधायकों ने देखा कि राहुल गांधी झूठा वादा करके गए हैं, विधायक ही अलग हो गए, सरकार ही चली गई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे के लिए जाने जाते हैं। एक भी वादे कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस के नेहरू के जमाने से लेकर के और मनमोहन सिंह के जमाने तक सब लोग चुनाव में जाते थे तो सभी के का एक जुमला होता था कि महंगाई दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, गरीबी भगाएंगे, गरीबी हटाएंगे। ये 70 साल राज करते रहे और गरीब बढ़ते गए और सिर्फ कांग्रेस अमीर और अमीर होती रही, और जहां तक फिर बीच में बोले आप कांग्रेसियों की यही दुर्दशा वाला जो आप कि वो बीच में जरूर बोलते हैं। ये कांग्रेसी बीच में जरूर बोलते हैं। पाठक साहब को कंप्लीट करने दो, बीच में जरूर बोलते हैं। पाठक साहब को कंप्लीट करने दो, भरत जी आप फिर खुलकर बोलिए। कांग्रेसियों का पेशेंस ही नहीं है। इसी पेशेंस के कारण तीसरी बार इस देश की जनता ने बाहर कर दिया। इसी पेशेंस के कारण कांग्रेस को तीसरी बार इस जनता ने बाहर कर दिया। और जहां तक एनडीए की का सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि मोदी के नाम पे ही 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मोदी जी का चेहरा ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी गई थी, 240 सीटें मिली है। इनके 7 साल के इतिहास में 240 सीटें कांग्रेस को कब मिली है? 62 साल पहले मिली थी। 62 साल के इतिहास, फिर बीच में बोले। अभी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ना पाठक साहब, आप भी तो 350 सीटें जीत रहे थे। आप भी तो 350 सीटें जीत रहे थे।
आप भी तो 350 सीटें जीत रहे थे कि हम तो 350 जीत के सरकार बनाएंगे। आपके 20 प्रवक्ताओं ने बोला, तो कांग्रेस के लोगों ने बोला कि हम 350 सीटें जीतने वाले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और उन्होंने बोला कि हम तो 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हुआ क्या? इस देश की जनता ने तीसरी बार मुंह पे तमाचा मारा और 100 की सीटें नहीं थी, 99 सीटों पे सिमेट कर रख दिया। यही तो जवाब देना थोड़ा विपक्ष 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट, विपक्ष की 36 पार्टियों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ले आ पाए और तमाम तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले ले आई है। इन्होंने पूरा इंडिया तथा कथित घमंडिया गठबंधन मिलकर के भी 240 सीटें नहीं ले आ पाया और ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले की। इंडिया जो एनडी गठबंधन था वो 230 पर सिमट गया और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटें लेकर के आई। अब ये तमाम तरह की बातें करते रहेंगे। सरकार तो मोदी की चल रही है और मोदी की ही सरकार है। किसकी सरकार है? कान खोल के सुन लो, 5 साल मोदी की सरकार चलेगी, वही कैबिनेट, वही पॉलिसी और वही सब चीजें। इसी तरह से माला जपते रहोगे मोदी का नाम का। बस अब इनको बोलने दो, अब जवाब तो देने दो। भरत सिंह जी बोलिए, भरत सिंह जी बोलिए। अजय पाठक जी, जरा सुनिए ना, आपके पास वापस आ रहा हूं। वो संविधान हत्या दिवस में भी चर्चा करेंगे, बोलिए भरत सिंह जी। पाठक जी, हाँ बोलिए। मोदी की सरकार है ना। हाँ। जरा कह दीजिए कि मोदी जी में हिम्मत है तो एक बार जो है संसद में कह दे कि ये मोदी की सरकार है। कह दे एक बार, खाली एक बार कह दे कि ये मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार। अरे भाई, देश के ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उनसे कह दीजिए, वो खाली एक बार ये कह दे मीडिया के सामने आके ये मोदी की सरकार है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। 10 साल के बाद अब सुन लीजिए, 10 साल के बाद एनडीए बोलना चालू किया है। एनडीए पहली बात में ये एनडीए बोलना चालू किया गया है, वो भी मोदी जी ही कह रहे हैं। ये एनडीए जो मोदी जी ये कहते हैं, वो कहाँ गया? ये ऐसा छाती पीटने वाला आदमी कहाँ गया? वो जो छाती पीटते थे संसद में, एक अकेला सब पे भारी, कोई भारी वारी नहीं है, कोई भारी वारी नहीं है। और अब जो है भारी आपके पास अब कोई है ना, अगर कोई भारी है तो वो है नीतीश बाबू और चंद्रा बाबू। अगर कोई भारी अगर अभी है इस समय सरकार में तो वो नीतीश बाबू है और चंद्रा बाबू हैं। आप लोग तो ऐसे ढपली बजाते रहेंगे। और बता दूं और एक चीज पाठक जी, और एक बात सुन लीजिए। एक साल आपकी सरकार पूरा नहीं करेगी। एक साल ये सरकार पूरा नहीं कर पाएगी। एक चीज, दूसरी चीज 70 साल, दूसरी चीज के लिए 23 साल से माला जप रहे हो। अरे भाई सुन तो लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, सुन तो लीजिए। 23 साल, हाँ सुनिए। अब देखिए, अभी आपने देखिए एक सवाल का जवाब, आपने जितना सवाल किया है सबका जवाब दे दूं। महाराष्ट्र की जनता सुनना, बोलिए नहीं महाराष्ट्र, नहीं आप बोलिए। देखिए नाम्बियार जी, 70 साल पाठक जी ने कहा कि 70 साल आपने सरकार चलाई। अरे भाई 5 साल उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी, यानी कि उन्होंने भी यही काम किया था। 6 साल, तो ये 70 साल और 76, तो मतलब हम लोगों ने 76 साल सरकार चलाई, तो हम 76 साल सरकार चलाए। अच्छा ये अभी तो आपने कहा कि 70 साल, अरे भाई 70 साल में 70 साल आप ही कह रहे हो, 70 साल तो आप ही कह रहे हो। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे खराब काम किया, इस देश की जनता को लूट लिया, महंगाई बढ़ा दिया। सबसे खराब काम करने में अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल थे।
यही कह रहे थे ना आप 70 साल में, इतिहास ही लूटने का है, 70 साल में यही था ना नामबिहार जी, इतिहास ही लूटने का है। नामबिहार जी 70 साल में भरत सिंह जी, आप उनका प्रश्नों का जवाब तो दीजिए, उनका प्रश्नों का जवाब दीजिए, आप प्रश्न और डालिए भाई, प्रश्नों का जवाब दीजिए भरत सिंह जी, जो पाठक साहब ने पूछे थे। अरे मैं सबका जवाब दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं पाठक जी, सुन तो ले, बोलो ना, वो पाठक जी को प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसे जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि 70 साल जब ये कहते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं इनके सारे प्रवक्ता, इनके सारे नेता, कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6 साल का कार्यकाल था। ठीक है, अगर आप अपना नहीं मानते हैं अटल जी को, हम अपना मानते हैं अटल जी को, ठीक है, अब अच्छा था खराब था ये आप जाने। दूसरी चीज, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं, ये बार बार झूठ बोल, ये देखिए, बोलिए बोलिए, उसके बाद बोलेंगे पाठक साहब, बोलिए। अटल जी की दुहाई करें कि हम अपना मानते हैं। देखिए धूर्त कांग्रेसियों का कि पहले एक वोट से अटल जी, देखिए इतने बड़े धूर्त अगर भाजपाई न होते, इतने बड़े धूर्त भाजपाई न होते तो आज देश की हालत ये न होती। देश की जनता के ऊपर डाका डाला, देश की जनता के खिस्सों पे डाका डाल के सारे पैसे को अदानी अंबानी को देना, ये इनका काम है। देश की जनता के पेट पे, महंगाई पे कभी इन्होंने जो नहीं कर पाए, कम नहीं कर पाए, लेकिन आज ये धूर्तबाज, ये जितने धूर्तबाज भाजपाई है, ये आज टीवी पे बैठ के कांग्रेस के ऊपर जो है कोसना शुरू कर दी है। ये ऐसे भाजपाई है, बताइए। अटल जी को अपना मान रहे हैं, कल को आडवाणी जी को अपना मान। अरे भाई हम तो पूरे अपने देश को अपना मानते हैं, हम तो भाई पूरे देश को मानते हैं अपना, हम तो पूरे देश को अपना मानते हैं। आपको अरे राहुल जी ने तो ये हम राहुल जी का हमारे नेता तो कहते हैं हम सबको प्यार करते हैं, प्रेम की दुकान हमने खोल के रखा, आप नफरत की दुकान खोले। पाठक जी हम आपको भी अपना मानते हैं, आप आज जो है भाजपा की तरफ से बात कर लो, लेकिन कल आपको कांग्रेस में ही आना है, आपको वहां पे कुछ नहीं भी मिलने वाला है, आपको कांग्रेस, आपको भाजपा नहीं पूछने वाली है। आपका ठिकाना आज नहीं तो कल कांग्रेस में ही है, आपका भविष्य कांग्रेस में ही है। भाजपा आपको कुछ नहीं दे सकती है, भाजपा आपको कुछ नहीं दे सकती है। नामबिहार जी देखिएगा, याद रखिएगा, आज नहीं तो कल अजय पाठक कांग्रेस में शामिल होंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर दिए, तुम धूर्त कांग्रेसियों के पास जा रहा है जिसने हमारी मातृभूमि के टुकड़े कर दिए। अरे भाई मैं आप देखिए धूर्त, देखिए संविधान हत्या दिवस जिस प्रकार से पाठक साहब, मोदी साहब, अमित शाह जी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस, इंदिरा गांधी के जिस प्रकार से उन्होंने कहा पूरा देश को जेल बना दिया था, 1,40,000 लोगों को अरेस्ट किया था, 1 करोड़ लोगों को नसबंदी किया था, तो ये जस्टिफाइड है। पाठक साहब ये संविधान हत्या दिवस किस प्रकार से आया? अभी तो उस समय क्या हुआ था आप बताइए ना, जब 1975 में 25 जून को कांग्रेस ने क्या किया था इस देश में? कांग्रेस ने संविधान की हत्या ही तो की थी, कांग्रेस ने संविधान की हत्या करके इस देश को जेल बना दिया था। इस देश में 1,75,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के उठा करके जेल में डाल दिया था और उनके राइट को छीन लिया था कि कोर्ट में जाकर के वो अपना मुकदमा भी नहीं कायम कर सकते हैं। और ये मजिस्ट्रेट को ऑर्डर कर दिया था, एसपी डीएम को, कि आदमी जो कांग्रेस का विरोध करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। प्रेस को बंद कर दिया था, लाइट काट दिया था, प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये इस देश में कांग्रेस ने संविधान की हत्या नहीं की थी तो क्या की थी? 100 बार संविधान बदलने वाले नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह के समय में 100 बार संविधान को बदलने वाले और इस देश में इमरजेंसी के तौर पे संविधान की हत्या करने वाले, वो हत्या दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे? या उस दिन इन्होंने संविधान बचाने का किया था काम, उस दिन तो संविधान की हत्या ही करने का काम किया था ना। ये कांग्रेस संविधान की हत्या ही करती है,
100 बार संशोधन करके संविधान की हत्या ही तो की। 100 और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 100 बार संशोधन किया और झूठा नैरेटिव खड़ा किया कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन जिन्होंने संविधान बदला, ये देश उनको जान रहा है, इसलिए तीसरी बार उनको विपक्ष में रखा कि संविधान हत्या दिवस ही मनाया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने देश की हत्या कर दी, भारत माँ की हत्या कर दी, भारत माँ की हत्या करके 2 देश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, हमारी माँ के का दोनों बाजू काट दिया, काट करके पाकिस्तान बना दिया और पाकिस्तान बना करके अपने एक भाई को दे दिया। और इस देश में उन्होंने इस तरह की नैरेटिव खड़ा किया। जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे नेहरू जी, उस दिन 10 लोगों की लाश हुआ, 10 लाख हिंदुओं की लाशें ट्रेनों में भर करके हिंदुस्तान आ रही थी। लाशों के ऊपर एक प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, तो हत्या ही तो ये लोग संविधान की करते आए। बड़े सब उनसे पूछे प्रवक्ता से पूछे, कांग्रेस को एक परिवार अपने आप को सर्वोपरि बताने के लिए इस देश के संविधान और इस देश की हमेशा हत्या ही तो करती आई है। तो भरत सिंह जी, आपको जवाब देना है संविधान हत्या दिवस, बिकॉज राहुल गांधी जी का कहना है कि 10 साल से अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। भरत सिंह जी, देखिए, संविधान हत्या दिवस की बात किया, बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण दिया है मंच पे खड़े होके। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इमरजेंसी लगाना हमारी गलती थी और इसको हमने स्वीकार किया है, हमने इसे अपनी गलती मानी है और गांधी परिवार ने भी इसे अपनी गलती मानी है। शायद ये पब्लिक डोमेन में भी है और मीडिया इसको जानती है और भाजपा का एक एक नेता कार्यकर्ता सब जानता है। मगर देखिए किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह से आंसू बहा रहे, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। संविधान की हत्या अगर कोई किया है तो पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया है। वो किस तरह से किया है कि 700 किसान एक साल के ऊपर जो है वो धरना देते हैं और 700 किसान शहीद होते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री को जरा भी शर्म नहीं आती है, जरा भी उनको जो है तकलीफ नहीं होती है, उनको ये जरा भी दिल में नहीं लगता है कि हमारे देश के किसान हैं। और 700 किसानों का जो है वो एक तरह से बलि लिया गया। आप देखिए किस तरह से नोटबंदी को, ये रात को आके नोटबंदी करते हैं और नोटबंदी करने के बाद कितनी बहनों का घर उजड़ गया, शादियां नहीं हुई, कितनी माताएं जो है लाइन में खड़ी रही, पैसे नहीं मिले, मर गए। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए, ऐसे भाजपा को क्या कहा जाए? ये अघोषित आपातकाल नहीं था तो क्या था? कोविड में, कोरोना में, ये लोग कहते हैं कोरोना में फोटो लगाते थे, नरेंद्र मोदी जी का फोटो सर्टिफिकेट देने पे। अरे तो क्या जो कोरोना में मारे गए उसके जो है डेथ सर्टिफिकेट पे फोटो नहीं लगा सकते? उस पे भी लगाना चाहिए था। ये मोदी जी के वजह से हुआ। इस देश ने देखा है, नाम्बियार जी, इस देश ने देखा है कि पैदल जाते हुए हजारों किलोमीटर पैदल लोग गए हैं और कितने लोग मारे गए हैं। ये कौन अघोषित आपातकाल किया था? ये कोई किया था तो भाजपा ने किया था, देश की जनता के साथ किया था। तो ये अघोषित आपातकाल करने वाले, और ये हमको बताएंगे कि संविधान की बात करते हैं और ये कहते हैं कि देश के 2 टुकड़े हुआ। देश के 2 टुकड़े करने वाला कौन था? बताइए कौन था देश के 2 टुकड़े करने वाला? ये जो आरएसएस के भेष में छुपे थे, ये जो आरएसएस के भेष में छुपे हुए, आरएसएस के भेष में छुपे हुए, संघ के भेष में छुपे हुए जो लोग थे, वो तलवार चाट रहे थे अंग्रेजों का। वो हमसे कहेंगे, वो हमें बताएंगे जो है मुखबिरी कर रहे थे, जो अंग्रेजों का मुखबिरी कर रहे थे। मुखबिर ये भाजपाई मुखबिर थे, ये भाजपाई अंग्रेजों का मुखबिर, ये मुखबिर करने वाले वो कांग्रेस से बताएंगे। ये मुखबिरी करने वाले भगत सिंह जी का, आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, राजगुरु जी किसके मुखबिरी से मारे गए? इनकी मुखबिरी से मारे गए। इन्होंने, ये मुखबिर थे उस समय
और ये बात करते हैं आजादी में इन्होंने उंगली भी नहीं कटाई होगी आजादी में, आजादी के लिए, और ये बात करते हैं आजादी के में उंगली भी नहीं कटाई होगी नामबिहार जी, और ये बात करते हैं आजादी की बात करते हैं, ये जो देश के टुकड़े की बात करते हैं। आज देश के टुकड़े टुकड़े करके जो है वो हालात ऐसा कर दिया है, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, चाचा को भतीजे से लड़ा रहे हैं, एक परिवार को दूसरे परिवार से लड़ा रहे हैं। ये भाजपा बात करने, ये भाजपा के नेता बात करेंगे देश के संविधान की, देश की रक्षा की, देश के लोगों के हित की। कांग्रेसियों से पूछिए कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो किसकी शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने थे? जरा इनसे पूछिए कि नेहरू जी किसकी शपथ लेकर के प्रधानमंत्री बने थे? इनको पता है? बता देता हूँ, बताइए। बता देता हूँ, बोलिए बोलिए भरत सिंह जी। नेहरू जी ने देश को किस तरह से चलाया पता है आपको? अरे मुखबिरी करने वाले, मुखबिरी सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, बताता हूँ। अरे सुनिए तो सही, जो हमारा अंग्रेजों के पेट से पैदा हुई कांग्रेस से बताए कि नेहरू जी ने किसकी शपथ ली थी? अरे भाई मुखबिरों के पेट से पैदा हुई, अरे बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। बोलिए 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 भरत सिंह जी बोलिए। मुखबिर, अरे बता तो रहा हूँ, देश में मुखबिरी करने वाली, उस पेट से जन्म लेने वाली पार्टी ये हमको बताएगी कि हमने किससे शपथ लिया? अरे आरएसएस और संघ के पेट से पैदा हुए जो देश में मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के मुखबिर बने थे, उसे पेमेंट लेते थे, पैसा लेते थे और देश के नौजवानों को शहीद करवाते थे। ये हमसे बात करेंगे नामबिहार जी, हमसे बात करेंगे, ये हमसे बात करेंगे। इनका बात करने का मुंह भी है क्या? ये बात करेंगे नामबिहार भाई, इनसे पूछिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका क्या हुआ? इनकी मुखबिरी किसने की थी? ये चंद्रशेखर जी से लेकर के, इनसे पूछिए राजगुरु जी की मुखबिरी किसने की थी? ये मुखबिर उनके पेट से ये पैदा हुई भाजपा, और ये आज कांग्रेस को बात करेगी, कांग्रेस को सिखाएगी। नेताजी बहुत सी मुखबिरी करने वाले ये धूर्त कांग्रेसी, ये धूर्त भाजपा, ये हमें सिखाएंगे। जो दलाली करते थे अंग्रेजों का दलाली करने वाले अजय पाठक जी, मैं रोकना चाहूंगा, बिकॉज कांग्रेस, राहुल गांधी, मोदी जी कह रहा है कि मैंने ये सब कर दिया, और जो पूरे वर्ल्ड बैंक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, वो सब कह रहा है कि इंडिया 7% ग्रोथ में। भाजपाइयों को जवाब देना जरूरी नहीं है, ये धूर्त भाजपाइयों को जवाब देना जरूरी नहीं है। नामबिहार जी, इनकी तो ये स्थिति है ना कि हम गिरे भी तो भी टांग हमारी हालत है, गिरे भी टांग हमारे ऊपर, ये इनकी हालत है। कांग्रेस कैसी है कि कांग्रेस की मुखबिरी करता हो, जो मुखबिरों के पेट से पैदा हुआ हो, ये हमें बताएंगे। कांग्रेस की जनक अंग्रेज है कि नहीं? और किसके झंडे के नीचे नेहरू ने, किसकी शपथ खा करके नेहरू ने प्रधानमंत्री बने थे? किसकी शपथ नेहरू ने ली थी? अरे भाई, सराय की शपथ। कभी देश का झंडा नहीं फहराया, कभी देश का झंडा जो है नहीं फहराया, वो हमें बताएगा। जो देश के संविधान को नहीं मानता वो हमें बताएगा। वो आरएसएस से पैदा हुए भाजपाई, वो हमें बताएंगे। कभी देश के झंडे को न मानने वाले लोग, वो हमें सिखाएंगे शपथ क्या होती है, शपथ क्या होती है, वो हमें सिखाएंगे, पाठक जी बताएंगे। भरत सिंह जी, फाइनल आता है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पे। लास्ट आपसे प्रश्न पूछता हूं, लास्ट राउंड है। पहले भरत सिंह जी आपसे शुरुआत करता हूं कि आप महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, शरद पवार साहब ने पहले कहा 155 सीट्स हमारा होगा एमवीए का, और आगे जाके पवार साहब अब कह रहे हैं कि 225 सीट्स होंगे, मगर फिर सीएम कौन होगा नहीं होगा वो सब चर्चा चल रहा है। तो कैसे आपके प्रोस्पेक्ट्स महाराष्ट्र में, एमवीए किस प्रकार से परफॉर्म करेगा, हाउ द एमवीए परफॉर्मेंस? भरत सिंह जी, उसके बाद मैं पाठक साहब पे आ जाता हूं। बोलिए भरत सिंह जी, हाउ इज द परफॉर्मेंस? आप कैसे परफॉर्म करोगे, क्या है?
देखिए नाम्बियार जी, 2-3 महीने पहले जो स्थिति थी वो करीब करीब हमें 150-150 सीट आ रहे थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र का माहौल है, जो हम पूरे महाराष्ट्र में घूम के देख रहे हैं, उस हिसाब से हम 200 सीट के ऊपर आ रहे हैं। इसी वजह से शरद पवार जी ने कहा कि हम 200 सीट से ज्यादा लेके आ रहे हैं। और देखिए महाराष्ट्र में इस समय तीनों पार्टियों में एक तरह से खलबली मची हुई है। वो शिंदे हो, चाहे वो अजित पवार हो, और चाहे वो देवेंद्र फडणवीस भाजपा हो, ये तीनों में होड़ लगी हुई है कि सबसे ज्यादा सीट कौन लेगा, सबसे और किसका टिकट कहां कटेगा। तो ये आपस की लड़ाई इनकी इतनी बढ़ गई है। मैं आपको और बता देता हूं, एक विश्वास से पूरे एकदम बताता हूं आपको कि इनके बहुत सारे लोग, शिंदे के बहुत सारे लोग वो उद्धव जी के टच में है, और जो है शरद पवार जी, अजित पवार जी के बहुत सारे लोग वो जो है शरद पवार जी के टच में है। तो आने वाले समय में जो मैं देख रहा हूं उसमें कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ कम से कम मुझे लगता है तो 80 सीट से ज्यादा जो है वो सीट हमें जो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो सीट मिलेगी उसमें 80 से ज्यादा करीब 100 के लगभग 100 सीट हम जीत सकते हैं। तो ये हमारी रणनीति है। और देश जो महाराष्ट्र का माहौल है, महाराष्ट्र की जनता का माहौल है, उसे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने दम पे 100 सीट जीत के ला रही है महाराष्ट्र में। और सीएम भरत सिंह जी, सीएम कौन होगा? उद्धव जी या कौन होगा सीएम कौन होगा भरत सिंह? देखिए मुख्यमंत्री ये हमारे जो आदरणीय हमारा जो है दिल्ली, उसके बाद में जो है अजित हमारे जो उद्धव जी हैं, और शरद पवार जी हैं, नाना पटोले जी हैं, हमारे जो महाराष्ट्र के नेता, चाहे वो सीएलपी लीडर बाला साहब थोरात हो गए, विजय वडेट्टीवार जी हो गए, ये सारे नेता तय करेंगे। और दिल्ली हाईकमान जो तय करेगा उसे हम सब लोग मानेंगे। सीएम चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का भी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो भी तय होगा वो दिल्ली तय करेगा। और सरकार हम जो है महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे। ये तो अदानी अंबानी के लिए काम करते हैं, ये अपने मित्रों के लिए काम करते हैं, मगर हम महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे। अजय पाठक साहब, आपके जबरदस्त स्कीम्स दो ऑर्गेनाइज किए जो भरत सिंह जी आलोचना करते रहते हैं, जो लाडली बहना स्कीम है, लाडली बहू स्कीम है, तो किस प्रकार से वातावरण बदलेगा? लोकसभा में तो हार हुआ थोड़ा बहुत, कैसे होगा विधानसभा में? नाम्बियार जी, लोकसभा के बाद अभी विधान परिषद का चुनाव हुआ। आपने विधान परिषद के चुनाव में देखा कि क्या स्थिति हो गई तथाकथित महाविकास आघाड़ी की, कि किस तरह से चारों खाने चिट हो गए, इनका सब कुछ समाप्त हो गया। और वो इंडिकेशन कर गया कि जो गलती लोकसभा में हो गई थी वो अब गलती ना विधायक करेंगे ना इस प्रदेश की जनता करेगी। उनको पता है कि अभी जो हमारी योजनाएं चल रही हैं विकास की, उन योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ खटाखट करने से कुछ नहीं होगा। इस देश की जनता ने देख लिया कि जिन लोगों ने झूठे फार्म भरवाए 8,500 का जगह, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन लगा करके बेचारे अपने घरों को चले गए। इन्होंने एक एजेंसी हायर किया, उसके थ्रू खटाखट 8,500 का लालच दिया, और वो फटाफट देने के चक्कर में सब समाप्त हो गया। इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में खासतौर से कांग्रेस के पास अभी जो सेटिंग सीटें हैं उसमें से भी ये सिर्फ 5 सीटें बचा ले जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। कांग्रेस तो पूरी तरह से यहाँ समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस के पास कुछ बचने ही वाला नहीं है। उसका इंडिकेशन तो आ गया, उसका इंडिकेशन इनके विधायकों ने तो अभी दे दिया कि इनके खुद के कैंडिडेट को, जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट हैं, उनको उन्होंने वोट ही नहीं किया, क्रॉस वोट हो गया। अब उस पे थोराट साहब भी रो रहे हैं, और क्या नाम है उनका, इनके प्रदेश अध्यक्ष भी रो रहे हैं कि हम तो कार्रवाई करेंगे, हमने तो स्वीकार कर लिया कि हमारे लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनके नाम भी हमको पता है, उनको सब चीजें पता है, फिर भी कार्रवाई करने की स्थिति में बेचारे नहीं है कांग्रेस के लोग। 3 दिन में कार्रवाई होने वाली थी, अभी 15 दिन होने को आ गए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह से खटाखट बोल करके और फिर अपना पल्लू सटा छुड़ा लेते हैं ये कांग्रेसी। पाठक साहब, कितना सीट होगा महायुति का, कितना सीट आएंगे? हाउ डू यू सी इट पाठक साहब? सारी सीटें महायुति की आने वाली है। इनके 50 से नीचे, इनके पूरे गठबंधन को ये 50 सीटें भी नहीं ले आ पाएंगे पूरे प्रदेश भर में। 50 सीटों से भी नीचे चले जाएंगे, 50 सीटों से भी नीचे चले जाएंगे। इनके पास है क्या? इस देश की जनता ने देखा
कि किस तरह से एजेंसियों को हायर करके और झूठा नैरेटिव खटाखट करते हैं। और वो देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया कि ये झूठा खटाखट है, इनको सफाचट करना है। लास्ट एक मिनट बोलने देते, इनको सफाचट कर दिया। नामबिहार जी, इनको विधायकों ने इनके सफाचट कर दिया। पाठक जी 1 मिनट बोलने दो, फिर 1 मिनट आपके पास आता हूं। लास्ट एक मिनट लास्ट बोलिए भरत सिंह जी, लास्ट 1 मिनट। देखिए नामबिहार जी ये इन्होंने विधान परिषद की बात की, वो जनता का चुनाव नहीं होता है, वो जो है चुनाव होता है खरीद फरोख्त का। जो इन्होंने किया 25-25 करोड़ रुपया जो दे के खरीद के जो वोट लिया है, वो 2-2 एकड़ जमीन दिया है, वो देखिए ये ठीक है। जनता के बीच में आइए, वहां नुमरा कुश्ती पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। एक दूसरा पाठक जी कर लीजिएगा जो करना है। अरे भाई कर लीजिएगा जो करना है, जो करना है कर लीजिएगा। अरे मुझे चिंता नहीं है, आप कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए पूरी बात, अजय पाठक जी सुन लीजिए पूरी बात। अजय पाठक जी पूरी बात सुन लीजिए, जो करना हो कर लीजिएगा, जाके देवेंद्र बोल दीजिएगा कर ले कुछ करना जो करना है। सुनिए पहली बात, और जो खटाखट की बात क्या कह रहे हैं पता है आपको? मोदी ने 2014 में 15 लाख फटाफट, और क्या हुआ ना 15 लाख आया, देश की जनता ठगी रह गई। और खटाखट आता, अगर हमारी सरकार बनती तो पूरी तरह से खटाखट पैसा आता। मगर क्या करे, पाठक जी परेशान है क्योंकि इनके अकाउंट में 8,500 रुपए सबसे बड़े We come to the end of the program. Thank you Bharat Singh ji, thank you Ajay Pathak ji. It has been a fantastic debate. बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से डिबेट हुआ. The whole country has enjoyed this particular debate. Thank you for being on the show. Thank you Bharat Singh ji, thank you Ajay Pathak ji, thank you so much. Namaskar. That's it. The debates that enlighten the country, the debates that throw away ideas, exchange of ideas that enlighten the minds of the viewers. As we always say, the preamble to the Constitution, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity, believing in eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. As we always say, whichever party rules us or elected, they should preserve the 4 pillars of the Constitution, the fundamental pillars of the Constitution, because if the Constitution survives, we all survive. We all survive. You can mark on to the जो लग रहा है बेल लगे हैं. You can subscribe to this channel and make it, and all India, the whole world can watch it. And that's all from Pradeep Nambiar. We'll come again with more news from Mumbai, Maharashtra and the nation. Till then, it's bye for now.